Arise, transcend thyself. Thou art man, and the whole nature of man is to become more than himself. It's always a great beginning कि प्रश्न से शुरुआत हो. Sir, what do you find similar in Mahabharat and Ramayana? A lot of similarities are there, and the biggest similarity I find is that an effort to ravage the modesty of a woman that caused the entire war. The same thing happened in Ramayana, same thing happened in Mahabharata. So if one lesson we can draw from these two epics, one single lesson, then it has to be that every time whenever a bad intention, a bad action tries to challenge the modesty of a woman, then mankind will have to face war, face huge wars. So that can be one single point lesson from there are a lot of other similarities. वहां भी हरण हुआ था सीता का, वहां हरण हुआ था सुभद्रा का, हरण हुआ था अर्जुन ने किया था, वो एक कहते हैं अच्छी वजह से था, वो एक कहते हैं खराब वजह से था. अधर्म की नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई, और बहुत सारी वहां ही 14 वर्ष का वनवास दिया गया, वहां भी 13 वर्ष का वनवास दिया गया. वहां भी पुत्रों का जन्म आसानी से नहीं हुआ, वहां भी पुत्रों का जन्म आसानी से नहीं हुआ. लॉट ऑफ टेक्निकल सिमिलैरिटीज आर लॉट ऑफ वेरी मच देयर. वो भी महाविष्णु के अवतार थे, वो भी महाविष्णु के अवतार थे. जय अजय उस कहानी में भी थे, जय विजय इस कहानी में भी थे. तो लॉट ऑफ टेक्निकल सिमिलैरिटीज. एट द फिलोसॉफिकल लेवल, बोथ द स्टोरीज फॉर धर्म स्थापना एंड modesty of a woman was challenged, and hence the great wars happened. So I want to know from you kids, what changes have you seen in your personality, in yourself, and in your thinking and your outlook to the world in past 4 years? Sir, like before the spiritual retreat, I was not very like spiritual and matlab utni आस्था नहीं थी. And after the spiritual retreat, I have felt that I have become like more humble and kind of like more aligned with God. That is why I can like do every task with not too much of difficulty. One thing that was there in my behavior before the spiritual retreats was that I was not very polite and not very like long tempered. I was very short tempered. But Okay. after the spiritual retreats and these sessions, so the calmness, serenity, and the peace that has come in my like body, that is because we have been on a path of the realization of the soul. So, sir, it has played a drastic role in my life for the past 2 years. That's a good answer, Sarthak, and I really hope that you continue to believe like this and you continue to walk on this path. So I have a very interesting question to Atulya. Is he still there? Yeah, Atulya, I want to ask you, there are millions of kids out there who do not have access to such organized spiritual retreats, who do not have that probably privilege. I won't say privilege, but that they are busy doing other stuff. They do not have access to schools like Jaipuria or probably Zoom medium. What your suggestion would be to them? How can they walk on the path of conscious transformation? Sir, reading these religious books, sir, as you told, sir, my perspective towards these religious books have been changed, sir. Okay. Sir, before you, sir, like Meghnad and Ravan, I thought they were very bad people. But sir, after you told that, sir, Meghnad was a you could say very good warrior and greatest hero of all time. So, sir, that I all were changed. The perspective towards them I have been changed. Perspective has changed. All right. Yes, sir. What about your perspective towards Ram? Has that changed or Yes, not? sir. Yes, sir. So my perspective, sir, this is my first spiritual retreat. Is it? Okay. And I'm a new student, sir. My path towards conscious transformation would begin, and sir, surely it has started. Very good, Atulya. All right. Congratulations for your first retreat. And I hope you join. You have inspired me a lot, sir. Yes. So Sir, Sarthak Agarwal has attended all 4 retreats as far as I am. Sir, like before the first spiritual retreat happened, sir, ma'am Anjali ma'am also held many Gita sessions, and like she told us about many lessons of Gita, about many lessons from Mahabharata, and in spiritual retreat she taught about the teachings of Aurobindo and the mother. So like one of the most basic difference I think is that when we consider our in India Hinduism, so these are our culture, these is our religion. So one of the most distinct characteristic of Hinduism is that it describes a way of life. So when ma'am told us about many of the teachings in Gita, Mahabharata, so more other than like the methodological aspect, the way of the live, how you should live a life, that things that when you understand it and when you
understand like why did they do this, and when you apply it in your life, you start to do things better. You start to understand that how should you take a decision, why should you take the decision, how can you take a better decision when you are speaking to someone, how you should speak. And when you listen to these stories, you get a better understanding of how you should live a life and how can you be a better instrument to the divine. Has that helped Sarthak in his day-to-day conduct? How's that changed? So one of the fundamental changes like that Sarthak Mishra told about the humbleness, because when you start to understand like the complexity of life, you start to become more humble. Then another thing is the confidence, because when you start thinking about things better, when you start understanding things better, you have more confidence in taking decisions and you have more confidence in doing things. The first session, like ma'am told us about the teachings of Aurobindo. So in that also that helped, like when you have more knowledge, you are able to speak better, because about everything you have a better knowledge and understanding. So whenever you speak something, you are able to speak with more confidence, more freely and more enthusiastic. Yeah, because you have the power of content behind you. You know things. If Yes. you know things, you can talk about them. Very good, Sarthak. Yeah. So when you understand like all these things, you are also become proud of the history of India. Like if you Yeah. don't have a knowledge, you cannot actually be proud of something. But when you have the knowledge about such long history of India and such complex history of India, you become more proud of being an Indian. Such a rich history of India. Yes. If it is rich, it has to be complex. There can't be a simple history, na? It Yes, has to be sir. complex. So best wishes to you, Sarthak. And I really hope that you keep thinking like this. You keep enlightening yourself like this. There will come a point in your life when everything is challenged once again. The way it came in Ram's life, everything was challenged once again after 13 years. So be ready for that time also, and all this knowledge, all these experiences of these retreats will help you a lot in facing that time. You cannot escape that. It will come, but you are better prepared, better equipped to face those times. Sir, I have attended all the 4 retreats, sir. And sir, the most important change which I have seen in me is to offer everything to the divine. So this is one attribute which has been inculcated in me by attending the spiritual retreats. So because everything which is there in this world is actually the creation of the divine. And so this has actually led me to be more grateful to what I have and to be more satisfied and contented towards my life. All right. That's a very great way of thinking and looking at things, Riddhi. I wish you all the best, beta. Wish everybody all the best. आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं बातों को, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, and I'm sure that they are going to help you a lot in your day-to-day living. Philosophy is okay, दर्शन शास्त्र is okay, जब तक आपका रोजमर्रा का जीवन नहीं बदल रहा है. You are not experience. Life is all about experiences. Life is an experiential learning. आपके अनुभव रोजमर्रा के जीवन में नहीं बदल रहे हैं, तो शायद जो ज्ञान है वो किताबों तक सीमित रह गया है. जैसे रावण के लिए हुआ था ना, किताबों तक ज्ञान रह गया, वो ज्ञान उसके जहन में नहीं पहुंच पाया. सो इसीलिए हमें हमेशा पूछता हूं कि फिलोसफी इज फाइन, यू टेल मी आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया है. How have you changed as a person? So all those who've not answered this question to themselves so far, please today in the evening think that how has this retreat changed me as a person, as a day-to-day person. Not Sarthak who will face examination in a certain way, not Sarthak who will face a certain challenge in a certain way. Sarthak of the day-to-day life, Sarthak of Monday, Sarthak of Tuesday, that has to change. That defines your character, you know. A great sportsman is not built on the pitch of a match when he scores a century. A great sportsman is created in the practice field, in the practice ground over years. जब वो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सेंचुरी तो एक इवेंट है, वो तो एक मैनिफेस्टेशन है, वो तो खाली एग्जीबिशन ऑफ पावर है. Where was that accumulation of power? Where was that accumulation of knowledge? वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So always bring about changes in your day-to-day life. All right, coming back to the story, कहाँ छोड़ा था और क्या क्या रह गया. एक तो कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी कहानियां हैं उनकी. मैं जो भी स्किप करता हूँ बोल देते हैं, सर आप भूल गए, भरत ने हनुमान को रोका था. बेटा मैं भूला नहीं था, अभी मैं सारा बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा. एनीवे, रावण पर विजय पाली गई है, and Ravan has been eliminated, and Vibhishan has been coronated as the king of Lanka, and Ram wants to come back to Ayodhya because Bharat
sorry, Vibhishan has been made the king of Lanka. Bharat had taken that promise from Ram कि अगर आप एक मिनट भी लेट हो गए, एक क्षण भी लेट हो गए, I will do self immolation, मैं आत्मदाह कर लूंगा. बहरहाल राम पुष्पक विमान लेकर पहुंचे हैं. We've seen that image of राम दरबार, you know, जहाँ हनुमान भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब हैं, तीनों माताएं हैं. कहते हैं कि राम ने 11,000 साल शासन किया, 11,000 years. Now it is difficult to believe कि 11,000 years. Of course we can say कि चलो वो तो भगवान थे या उस समय इतना साल जीना संभव था. Or we can assume 11,000. There's a difference between the divine years and the human years. Human years are different from the divine years. So अगर आप शिव महापुराण खोलेंगे तो उसमें लिखा होता है कि 1.2 million years of human life they create one day of Brahma's life. And then ब्रह्मा के लाइफ में सावन होते हैं, उस तरह के 8,000 सावन मिलके one Brahma's lifetime is finished. एक पूरे ब्रह्मा की lifetime is one day in Vishnu's lifetime, and the lifetime of whole Vishnu is one day in Shiva's lifetime. So there's that question of time is there. It is an unsettled question that how can somebody rule for 11,000 years? Safer assumption is भगवान थे, इसी काम करने आए थे, उन्होंने किया. Or you can find answers in Mahashiv Puran, in Vishnu Puran, that how was that time calculated. जब 14 साल माना तो 11,000 साल कैसे शासन किया और 11,000 साल तक लव कुश क्यों नहीं आए. उसको सब छोड़ रहे हैं. एक क्वेश्चन जिसका जवाब देना जरूरी है, जो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि राम के जीवन से 2 प्रश्न नहीं जाते. बाली को छुपकर क्यों मारा, सीता का परित्याग क्यों कर दिया. बाली को छुपकर क्यों मारा, इज दैट सेटल्ड नाउ? आई एम नॉट सेइंग आई गेव द आंसर्स, वाल्मीकि गेव द आंसर्स, कम्मन गेव द आंसर्स. आई जस्ट told you the answers. These are not my answers. राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा, is that settled? दूसरे सवाल का जवाब क्या है, सीता को क्यों छोड़ दिया. जिस सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, 1 साल तक पैदल गए, महासंग्राम हुआ, शक्ति का आघात लिया लक्ष्मण ने अपने छाती पर, राम को इतने घाव लगे, इतने सारे वीर इस धरती से चले गए, एंड देन उस सीता को छोड़ दिया. सीता का परित्याग रामायण का सबसे त्रासदी भरा एपिसोड. जब भी ये होता है फिल्म में या टेलीविजन में, थिएटर में, सब लोग रो रहे होते हैं. सीता का परित्याग कर दिया. क्यों किया राम ने? He was मर्यादा पुरुषोत्तम. He endangered his life to save the modesty of a woman. Anybody wants to take a chance? क्यों किया राम ने ऐसा? सीता को क्यों छोड़ दिया? Anybody, any teacher, any student, any parent? असलियत में सर, क्योंकि जब सीता वहां से आई थी तो अयोध्या वासियों को ये लग रहा था कि क्योंकि वो राक्षस के यहाँ से आई है तो वो थोड़ी सी अपवित्र हो गई हैं, तो अयोध्या वासियों का वो मन के अंदर श्री राम भाप लिए. और फिर जब महादेव के पास गए, बहुत सारे इसके वर्जन है, तो महादेव के पास गए तो महादेव कुछ कहे नहीं, तो भगवान श्री राम ने कठोर निश्चय लिया कि मैं सीता का परित्याग कर दूंगा. तो 4 लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए आपने अपनी धर्म पत्नी को जंगल में भेजा. नहीं सर, पूरा कन्वीनियंट सर, पूरा अयोध्या. हाँ सर, मे बी राम जी अगर कोई दूसरा ऐसा करता सर तब भी उनको अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ता. सर मे बी राम जी जो है वो ये दिखाना चाह रहे थे कि सेम रूल्स जो है हर किसी पे अप्लाई करते हैं, तो अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे भी ये करना पड़ेगा. ही वांटेड टू शो that he was impartial and that he would also follow the same rules he expected others to follow. So isn't it Ram's responsibility to correct the wrongdoings of others? अगर एक गलत प्रैक्टिस चली आ रही है तो राम was best placed to correct that. अगर ऐसा ही था तो फिर उन्होंने हिल्या के साथ में वो क्यों किया जो उन्होंने किया? सिचुएशन तो सेम ही है. एग्जैक्टली. उसका तो उद्धार करा के दिया. उससे तो एक्चुअल में गलती हुई थी. इट वाज अ फैक्ट दैट शी डिड अ मिस्टेक. यस, सार्थक कुछ कहना चाहते हैं? मुझे 2 रीजंस लगते हैं. मैंने पढ़ी तो नहीं है ना वाल्मीकि रामायण पूरी पढ़ी है. मुझे जो रीजंस खुद से लगते हैं, तो पहला तो ये लगता है कि एक ये रीजन मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी ने लिख तो ली थी रामायण, वो राम जी का जब शासनकाल चल रहा था तभी लिख ली गई थी, लेकिन फिर वो बोलता कौन, प्रचार प्रसार नहीं होता तो फिर लिखने का क्या मतलब था. तो उन्होंने ये बात राम जी के सामने रखी. अब सामने जाकर नहीं रखी, वो तो मन ही मन बातें हो जाती हैं. तो राम जी ने इसलिए लव और कुश को भेजा कि वो पहले प्रचार और प्रसारक हो राम की कथा के जी, जिससे वो कथा उनको सिखाई जाए और वहां से वो बोली जाए जी. और दूसरा मुझे लगता है कि अगर राज्य में लवकुश पले बढ़ते, वहीं अच्छे से रहते भोगों में, मतलब उनको जीवन की कठिनाइयां नहीं पता होती ना, तो वो इतने पावरफुल नहीं होते कि स्वयं लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसों को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोककर पराजित करते. वो कर नहीं पाते. अपने से कितने जब उनके पिताजी ने कर लिया तो वो भी कर लेते. पिताजी भी तो रहे थे ना राजमहल में ही, और वशिष्ठ के शिष्य थे. गुरुकुल के टाइम पे गुरुकुल में भी गए. तो सारांश बेटा, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, मैं खाली बता रहा हूँ जो काउंटर थॉट्स आते हैं हमारे मन में. आप जो बोल रहे हैं बहुत सुंदर बोल रहे हैं, आप बहुत
सुंदर शब्दों का चयन कर रहे हैं. ये सार्थक, लास्ट वन, सार्थक, you tell me, सार्थक. One thing that comes to mind is that Ram ji always considered serving the public his utmost duty, like being the king of the Ayodhya. He had the first duty towards the people. And when we know that when you want to lead people, you have to have the respect and confidence of the people, because Yeah. if you give a decision that is not to their liking, if you do not have their confidence and respect, you will not be able to get them to do that. So maybe that if the people after winning such a war, they if due to the conditions surrounding Sita ji, their confidence was and respect towards Ram ji may be diminished towards that, and he considered that even before his duty towards Sita ji, his duty towards people came first. So maybe he, for upholding his respect as the king, he did not want to actually do that, but because he was the king and he wanted that the sanctity of the king and the empire remained, that respect that people god-like respect had, and that was not tainted. So he actually separated because before he became the king, he did not do that, even though people were saying. But after he became the king, he did that because he wanted to keep the sanctity and the respect people had, that godlike respect for the king, to remain. All right, Sarthak, आपने बहुत अच्छा बताया that he had his own responsibilities towards the people of Ayodhya, and he was the king, and a king is more than a husband, more than a father, and at the time of decision, he has to take difficult decisions at time. Right, Sarthak? So like Sarthak and all other kids mentioned, there are various explanations given for this thing of Ram himself cannot come. The authors, the thinkers, the preachers, the philosophers, they read these books and they give a lot of logics. मैंने भी बहुत सारे logics पढ़े हैं, logics सुने हैं. Some of them are written in a way that it can't be said on this platform. कुछ लोगों ने इतना भी derogatory लिखा हुआ है, which you'll figure out yourself. But the reasons that appealed to me the most, and the reasons that I have been trying to tell through my plays, through my stories, through my sessions, there are a couple of them, and see if they appeal to you as well. Otherwise, it is an unanswered question, and it is not possible for a mortal person like me and like all of us to settle these ages-long questions. We can at least try to understand them. We have always looked at it from a certain point of view, Mona ma'am, that सीता पर इल्जाम लगा, सीता पर शक हुआ, लोगों को लगा कि भाई रावण इतना पराक्रमी है, इतना तेजस्वी है, उसके सामने एक साल तक कैसे आप निर्भीक निर्भय खड़ी रही होंगी. You must have submitted, you must have committed yourself to him in order to protect your life, to protect your freedom. So we always try to build a case that Sita did not deserve to stay in Ayodhya anymore. This case has already been built कि राम राज्य स्थापित है, and a person like Sita who has a question mark on her character, she did not deserve to stay in Ayodhya anymore. Had she stayed in Ayodhya anymore, there might have been a situation of गृह युद्ध, home rebellion. वहां पे गृह युद्ध हो जाता, एक wave build होनी शुरू हो गई थी. But Promini ma'am, we never asked the question which had to be asked the other way round. Did Ayodhya deserve to accommodate a person like Sita? हम कह रहे हैं सीता अयोध्या के लायक नहीं, अयोध्या सीता के लायक बची थी क्या? सीता जैसी पंचकन्या, भी आप लोग विवाद कर रहे थे पंचकन्या है कि नहीं है, सीता जैसी पंचकन्या, शक्ति का अवतार, राम की पत्नी, क्या अयोध्या इस लायक रही थी कि सीता जैसी महाआत्मा वहां पर रहे? और जहां आप सब लोग अच्छे परिवारों के लोग हैं, जहां आपका सम्मान ही नहीं हो रहा, जहां आपके चरित्र पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं बिना किसी धरातल के, आप क्यों वहां रहना चाहेंगे? Why won't you want to leave them on their fate? Now listen to this episode. When Sita was pregnant, राम ने उनको बुलाया अपने पास और उनसे बात कही, उनसे बोला, सीता मेरे मन में एक प्रश्न है. एंड सीता सेड, बताइए, आपके मन में हमेशा ही प्रश्न होते हैं, क्या प्रश्न है बताइए. एंड राम ने प्रश्न पूछा, सीता मेरे मन में प्रश्न है ये कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत बहुमूल्य उपहार हो, ईश्वर की दी हुई बहुत बहुमूल्य वस्तु हो, बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद हो ईश्वर का दिया हुआ, और उस व्यक्ति ने जीवन भर उस बहुमूल्य उपहार की रक्षा, उसकी अस्मिता की रक्षा करी हो, पूरी साधना से, पूरी निष्ठा से, पूरे प्रेम से उस उपहार का ध्यान रखा हो, लेकिन आज यदि मेरा घर मैला हो गया है, आज मेरा घर गंदा हो गया है, मेरे घर में गंदगी कीचड़ आ गया है और उस कीचड़ के धब्बे उस उपहार पर लगने शुरू हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सीता की आंखों में आंसू थे, वो समझ गए क्या बात कर रहे हैं. और कौन उपहार है,
कौन आपका घर है, कीचड़ की गंदगी कहां से आ रही है? सीता ने कहा, राम, नीति ये कहती है, न्याय ये कहता है कि आपके घर में फैली गंदगी के चींटे उपहार पर नहीं लगने चाहिए, गलती उपहार की नहीं है, अपना घर साफ कीजिए। राम ने कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरा घर समय के मापदंडों से परे है, युग बीत जाएंगे घर को साफ करने में। सीता ने बोला, तब तक आप अपना घर साफ नहीं कर लेते, उस उपहार को एक और पावन, एक साफ जगह पर रखे आइए। आप वर्षा में मंदिर की सफाई करती हैं, आप मूर्तियों को हटाती हैं ना, या वहीं पे पेंट शुरू कर देती हैं, झाड़ू मार देती है भगवान के ऊपर? नहीं ना, आप उनको कहीं और रखती हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, कि पहले मैं अपना घर साफ कर लूं, मंदिर साफ कर लूं, भगवान को वापस लेकर आऊंगी। सीता ने बोला, उस उपहार को रख के आइए, कहीं और रख के आइए, अपने घर को साफ कीजिए। राम ने बोला, मेरे को तो युग लग जाएंगे। सीता ने बोला, लगाइए युग, आप घर साफ तो कीजिए। फिर सीता ने आंखों में आंसू भर के पूछा, बस इतना बता दीजिए, ये सीता वो उपहार है या उपहार पर लगी गंदगी है? राम ने हाथ जोड़कर कहा कि सीता कभी गंदगी हो ही नहीं सकती, गंदगी मेरी अयोध्या में आ गई है, सीता मैं क्या करूं, इसको साफ करने में युग बीते जाएंगे। सीता ने वादा किया, मुझे आप कहीं साफ जगह पर भेज दीजिए, मैं वादा करती हूं जिस दिन आपका घर साफ हो जाएगा मैं लौट के आ जाऊंगी। अब आप लोग बताइए, हमारा घर साफ हो गया क्या? क्या हमने नारी पर संदेह करना, उसकी अस्मिता पर हमला करना बंद कर दिया क्या? तो क्या पता सीता जी, वो तो एस्ट्रल बींग्स हैं, क्या पता वो आज भी के इंतजार कर रही हैं कि राम राज्य स्थापित हो तो जाए पहले। मैं तो लौट आऊंगी, आज लौट आऊंगी, लेकिन बिलीव मी, आज के टाइम में भी 2021 में भी कल फेसबुक पे ट्रेंड चालू हो जाएगा, बॉयकॉट सीता, शी हैज कम बैक, बॉयकॉट सीता, शी हैज कम बैक। सो आर वी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट सीता? Have we elevated ourselves to that stature where Sita can again be a part of our family? So it was never that Sita didn't deserve to stay in Ayodhya, it was always Ayodhya didn't deserve Sita. And that is Ram always said कि सीता तुम्हारे लायक जगह रही नहीं है। सीता ने फिर आंखों में आंसू भर के एक सवाल पूछा, राम मुझे इतना बता दो कि मेरे गर्भ में जो संतान है वो एक दिन अवश्य पूछेगी हमारा पिता कौन है, मैं उनको क्या उत्तर दूं? राम ने अपना भारी गले से लेकिन कॉन्फिडेंस से बोला कि सीता तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो ना अभावों की संतान है ना अपमानों की संतान है, वो सीता और राम के उस प्रेम की संतान है जो तब से है जब से शिव हैं और तब तक रहेगा जब तक शिव रहेंगे। हमारा प्रेम मिलन और सेपरेशन, यूनियन और सेपरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए जब तुम्हारी संतान पूछे उनको बताना पूरे विश्वास के साथ कि तुम्हारा पिता था एक शब्द, एक बाण, एक नारी के सिद्धांत पर पूरा जीवन काटने वाला सीता का पति राम। उनको ये मत बोलना रामचंद्र के राजा राम, उनको बोलना सीता का पति राम। सो राम एंड सीता को अलग करके हम लोग उनके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। वी आर डूइंग इनजस्टिस। कितनी बार होता है पारुल मैम की यू एंड योर पार्टनर टेक अ डिसीजन कि डिफिकल्ट टाइम है, हम दोनों एक साथ टीम काम करते हैं, तुम ये काम संभालो, मैं ये काम संभालती हूं, शायद हम कुछ दिन के लिए उस तरह से साथ ना रह पाए जैसे रहते हैं। आई गो टू वर्क, आई ट्रेवल अलॉट, माई वाइफ स्टेज बैक होम। दिस डज नॉट मीन वी आर सेपरेटेड, because we know one day when the work is over, will come back to me. Similarly, Ram is at work and we are his mediums of work, we are his instruments of work. Aditya, Nidhi, Arna, Shashwat, आप सब राम के मीडियम हो। सीता जी आ जाएंगी, उनके भी आप पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, पहले घर साफ तो करो। So this was the first most of the reason that appeals to me the most, that सीता का यहाँ रहना ठीक नहीं था क्योंकि अयोध्या डिजर्व नहीं करती थी। Second very political reason, Sambhavi, political reason. If you look at today's politics, what do we expect from today's leaders? हम आज के लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देश का सोचिए, परिवारवाद मत कीजिए, नेपोटिज्म मत कीजिए। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई भी आरोप लगा, एक कंप्लेंट आ गई है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि उसको रेजिग्नेशन दिलवाइए, इंक्वायरी बिठाइए, एंड लुक एट द कंट्री, डोंट लुक एट योर फैमिली। हम क्यों नाराज रहते हैं उन पार्टियों से, उन नेताओं से जो वंशवाद करते हैं? राम ने कहा मैं वंशवाद नहीं करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ माई प्रजा। सीता तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम राजा राम की पत्नी हो। और राम और लक्ष्मण ने ये क्वेश्चन उठाया कि राम को राजा ही क्यों रहना है? फिर अगर राजा राम होना इतना कठिन है, राजा राम होने का मतलब है कि सीता से दूर होना पड़ेगा, क्यों आपको राजा राम रहना है? भरत ने जैसे 14 साल राज संभाला, आगे और राज संभाल लेगा। आप और सीता माता वापस में वन में चलते हैं, हम तो 14 साल वन में रहकर आए ना, फिर रह लेंगे जीवन भर वन में। राजा होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तब सीता ने जवाब दिया कि तुम राज्य मोह का इल्जाम किस पर लगा रहे हो? लक्ष्मण को लगा कि भैया को राजमोह हो गया। सीता ने बोला उनकी बात कर रहे हो जो किष्किंधा को जीतकर छोड़ के आ गए, लंका को जीतकर छोड़ के आ गए, अयोध्या के सिंहासन पे 14 साल आंख उठाकर देखा नहीं, उनको क्या राज्य में होगा? बट ही नोज
His people need him more than they need Bharat. आज अयोध्या को भरत की नहीं, राम की आवश्यकता है. इस श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ पति और श्रेष्ठ शत्रु को आज श्रेष्ठ राजा बनना है. वो काम बाकी है राम का भी, उनको वो काम करने दो, पूरा करने दो. इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन. राम और सीता अलग होकर कैसे फैसला ले सकते हैं? वो सीता जो धरती के मध्य में सागर, सागर के मध्य में लंका, लंका के मध्य में बैठी है, फिर भी विश्वास है कि राम आएंगे मुझको लेने. उस विश्वास को एक धोबी की अफवाह तोड़ देगी. यहां हम गलत हो रहे हैं, इतिहास हमारे साथ गलत कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, सीता इज स्टिल वेटिंग फॉर वी पीपल टू डू आवर जॉब प्रॉपर्ली. शी विल कम बैक. कितना सुंदर वर्णन है जब अगले दिन लक्ष्मण रथ तैयार कर रहे हैं कि माता चलो चलने का समय हो गया है. पता था वाल्मीकि आश्रम लेके जा रहे हैं, रथ तैयार कर रहे हैं. सीता रथ पर आ गई और झांक झांक कर देख रही हैं कि राम खिड़की पे आएंगे कि नहीं आएंगे. राम खिड़की पर आएंगे, पर राम कहाँ आते थे? उनसे तो अपना दुख कंट्रोल नहीं होने वाला. पता था कि मैं देख के रो पड़ूंगा, सीता मुझको देख के रो पड़ेंगी. और जब लगा कि सूर्य उगने वाला है, राम अब तक खिड़की पर नहीं आए हैं, सीता ने बोला लक्ष्मण मुझे 2 मिनट दो, मैं भागी भागी जाती हूँ, भागी भागी आती हूँ. अब भाग भाग के कहाँ गई? वो राम के केबिन में गई? नहीं, राम के केबिन में नहीं गई, रसोई में गई. कुक को बोला राम के खाने में नमक कम डाला करो, उनको पसंद नहीं है, ज्यादा तल मत देना गलती से. वैद्य के पास गई. राम दिन भर बैठे बैठे काम करते रहते, उन घुटनों में दर्द हो जाता है, दवाई समय पे लगाना. गार्ड के पास गई कि रात में सो मत जाना, नींद आए तो किसी को बदल देना. मैं वो रात में उठ के चेक करती थी सीता कि गार्ड सो तो नहीं गया है. हर एक इंसान जो राम का जीवन सहज बना, उसको गाइड करके गई है, समझा के गई है कि आज के बाद मैं नहीं हूं, प्रॉमिस मी, अपना काम ठीक से करोगे. कुक को, दर्जी को, सारथी को कि घोड़ा तेज मत चलाना, उनको देखना होता है सब. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ सीता इज. और हम बोलते हैं परित्याग कर दिया. राम सीता का, सीता राम का परित्याग कर ही नहीं सकते. जो ये कहता है उसकी निष्ठा को चैलेंज कीजिए, किस बेस पर कह रहे हो? सो दिस एज पर मी वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सो कॉल्ड सीता परित्याग, व्हिच एज पर मी नेवर हैपेंड. राधा कृष्ण भी तो कहां मिले? राधा कृष्ण नहीं मिले ना. तो क्या उनका प्रेम अधूरा हो गया? उन पर तो नहीं बोलते कि राधा का परित्याग कर दिया. वहां तो वादा करके गए थे लौट कर आऊंगा, लौट कर तो नहीं आए. वो तो आज भी इंतजार कर रही हैं. तो इसीलिए मैंने आपको एक कविता बताई थी ना, धर्मवीर भारती की अंधा युग. आज एक और कविता लिखी, आपके लिए इतना होमवर्क इकट्ठा हो गया है. एक कविता लिखी है धर्मवीर भारती की, कविता है कनुप्रिया. कनुप्रिया, कनुप्रिया माने कृष्ण की प्रिया. कनु माने कृष्ण और कनुप्रिया ने कृष्ण की प्रिया. कनुप्रिया यानी राधा. उसमें अंजलि मैम कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारती जी ने. राधा कहती है कृष्ण को, कनु तुम तो मंत्र बुझे बाण से छूट गए. कनु जैसे बाण छूट जाता है ना धनुष से, तुम तो मंत्र बुझे बाण से छूट गए कनु, और शेष रही कौन? मैं प्रत्यंचा सी थरथराती हुई. बाण छूट जाता है, प्रत्यंचा थरथराती रह जाती है. राधा बोल रही है कनु मैं आज तक थरथरा रही हूं, मुझे शांत तो कर जाओ. एक बार फिर आपको धनुष की प्रत्यंचा को पकड़ना पड़ता है ताकि उसकी थरथराहट रुक जाए. यही हाल तो सीता का है कि तुम तो मंत्र बुझे बाण से छूट गए राम, मैं शेष रही कौन? प्रत्यंचा सी थरथराती हुई. ये शब्द लिखे हैं धर्मवीर भारती ने अपनी कनुप्रिया में. उसके बाद एक गीत भी आया था, अगर आपको याद हो, एक फिल्म आई थी मसान, उसमें कविता है, दुष्यंत कुमार की कविता है, बहुत अच्छी कविता है. उस कविता की पहली लाइन है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं. तो वो जो किसी के जाने के बाद का जो कंपन होता है ना, वो मुश्किल होता है सहना, क्योंकि वो आप अकेले सह रहे होते हैं ना. कंपन है, लाइफ लॉन्ग थरथराहट है. प्रत्यंचा बन के थरथरा रही है, पर कौन करे? ना कृष्ण लौट कर आए, ना सीता लौट कर आए, ना राम लौट कर आए. तो विदाउट ट्रेजेडी देयर इज नो लव स्टोरी. There is no love without separation. So this is my interpretation of Sita Parityag. I hope this is okay with you. This is not final interpretation. बहुत सारे लोगों ने बातें बताई हैं कि सीता को क्यों छोड़ा. कई ने सीता पर इल्जाम लगाया है, कई ने राम पर इल्जाम लगाया है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद आंसर सीख करने पड़ेंगे. मैं आपको किताबें जरूर आज बता दूंगा. आज मैं इसीलिए लेके बैठा हूं किताबें, जो आपको पढ़नी है वो आपको मैं एंड में बताऊंगा. सो दिस इज माई एक्सप्लेनेशन ऑफ सीता परित्याग. इफ दिस इज ओके विद यू ऑल, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं गुरुकुल के राम के ऊपर, जिसको आज आप लोग सुनने आए हैं. बहुत सुंदर आपने बताया अतुल जी. थैंक यू मैम. सीता जी का परित्याग बहुत सुंदर. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए. गुरुकुल के राम, राम के गुरु हमने बताया कौन थे? वशिष्ठ. और दूसरे गुरु विश्वामित्र. हाँ सार्थक, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सार्थक बोलिए. Sir, I had one more point to support your argument. Like today also, sir, you told that when Hanuman ji reached Lanka, there Sita ji didn't go with him because one of the reasons was that she afterwards told him that Ram only has 1 month to
get to her. Like you told, like to motivate him or to like motivate him to increase his efforts towards the task. So Yeah. there also we can see that now that Ramji has returned Ayodhya, all of his like worries have been put down, because now he doesn't have that motivation we had to reach Sita, that motivation with which he reached Sita in such a long time. So Yeah. in such a short time. So maybe she separated for him to motivate him towards cleaning the Ayodhya, because if he, as soon as he cleans Ayodhya, Sita ji will return. And because waiting for Sita ji, so he will try his most to clean it as soon as possible. Yeah. If Yeah. Sita ji is You're right, with him, Sarthak. he will not have that much. You're right. Her separation motivated Ram to work more dedicatedly to establish Ram Rajya. एंड आप देखिए यही राम होने का मतलब ये है कि जिस प्रजा के कहने पर सीता को जाना पड़ा, उस प्रजा के प्रति एक क्षण भी भेदभाव नहीं किया, दुर्व्यवहार नहीं किया. हमारी तरह नहीं कि मैं उस स्टेट में इलेक्शन हार गया तो उधर मैं देखता हूँ क्या होता है. यू नो, यू डिडंट वोट फॉर मी, नाउ लेट मी डू व्हाट आई कैन डू. सो ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे. राम के लिए प्रजा उनकी फैमिली की तरह थी, इसीलिए ही लेड बाय एग्जाम्पल. यथा राजा तथा प्रजा कहा ना चाणक्य ने. उनको पता था जो मैं करूंगा वही, वो कृष्ण ने भी कहा कि व्हाट आई डू द पीपल फॉलो. इसलिए राम को अपना कंडक्ट बहुत बहुत इंस्पायरिंग रखना था, उन्होंने रखा और राम राज्य की स्थापना करी. जिस राम राज्य कल्पना हम आज भी करते हैं वो नहीं पाता है. सो राम हमेशा से इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रहे सार्थक, की मर्यादा का हनन किए बिना. इट इज वेरी इजी टू गिव अप. यार इतने सारे रूल्स हैं यार, मुझे नहीं बनना राम, मुझे नहीं बनना बेस्ट, आई एम ओके दिस वे. बट ही स्ट्राइव टू डू whatever best he could, keeping his मर्यादा intact. इट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जो कि मर्यादा को कैसे मानना मुश्किल हो जाता है. आप लोग हाईवे पे जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हाईवे, आप यूर रनिंग ऑन प्रॉब्ली आगरा हाईवे और दिल्ली मुंबई हाईवे. इतना अच्छा हाईवे, गाड़ी अपने आप 120 चली जाती है, पर मर्यादा क्या है 80. मर्यादा 80 है ना, बोला कि 80 से ऊपर नहीं जाना. एंड लाइक यार 80 पे चल के कुछ मजा नहीं आ रहा है, खाली हाईवे पड़ा हुआ है. अगर राम होते क्या वो 81 भी जाते थे? नहीं जाते थे. मर्यादा में रहकर मंजिल पर पहुंचूंगा ना. 120 पे तो तुम पहुंच जाओगे, आनंद ले लोगे. मैं आनंद लेने आया, मैं मर्यादा स्थापित करने आया हूं. सो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, लाइफ के छोटे छोटे रेगुलेशंस को मानना. छोटी छोटी बात, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 100 रुपए देके छोड़ के आ जाएंगे. दिस इज नॉट बीइंग राम. सर वट एवर रॉन्ग आई हैव डन, आई एम प्रिपेयर टू पे द फाइन. दैट इज बीइंग राम. मर्यादा को बिना तोड़ते हुए आपको अपना कंडक्ट बेस्ट करना है. दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम राम. इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं राम के अभ्युदय की. अभ्युदय माने राइज, राइज ऑफ अ सन. अभ्युदय ऑल्सो मीन्स अभय का उदय. जहां राम है वहां अभय है, फियरलेसनेस है. अगर आपने राम का हाथ पकड़ लिया तो आपका अभय हो गया, आपके अभय का उदय हो गया, अभ्युदय. राम का इतना बड़ा चरित्र था, इतना बड़ा उनका मयार था. उनकी एजुकेशन कैसी रही होगी, उनकी एजुकेशन क्या रही होगी? हमने बताया राम की गुरु थे वशिष्ठ और विश्वामित्र. कृष्ण के गुरु कौन थे? जस्ट पॉप अप क्विज. कृष्ण के गुरु कौन थे? कौन बताएगा मेरे को? वाज कृष्ण गुरु? टाइप इन द चैट बॉक्स. संदीपनी. या वेरी गुड संदीपनी. यस संदीपनी. कृष्ण की एजुकेशन बहुत लेट शुरू हुई, बहुत लेट शुरू हुई. जो मथुरा पहुंच गए, पूरा उन्होंने डेमोक्रेसी स्थापित कर दी, तब जाके बोले थोड़ा पढ़ के भी आता हूं मैं. हालांकि वो पहले से पढ़ लिख के आए थे. राम बचपन से ही शिक्षा में लग गए थे. अब सरप्राइजिंगली जो रामायण है, वाल्मीकि की जो रामायण है या जो तुलसीदास की रामायण है, उसमें राम के एजुकेशन ईयर्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं लिखा है. देयर आर मेंशंस, अलग अलग जगह पर मेंशन है. वशिष्ठ के ज्ञान के बारे में मेंशन है. वशिष्ठ अलग अलग समय पर कैसे गाइड करते थे अपने स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली इन गुरुकुल. इनफैक्ट जब राम वनवास पे चले गए और भरत लौट कर आए तो पता चला कि पिता का देहांत हो चुका है. तो उसमें लिखा हुआ है तुलसीदास की रामायण में कि भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म वचन उचारे. कि भरत को अपने पास बैठाकर वशिष्ठ ने नीति और धर्म की बातें बताई. फिर वशिष्ठ खुद भी रो पड़े थे भरत का दुख देखते देखते. तो बहुत जगह लिखा हुआ है कि वशिष्ठ ने ज्ञान की बातें दी. कैटेगोरिकली क्या क्या सिखाया, कौन कौन सी कहानियां सुनाई, राम ने क्या क्या पूछा, क्या क्या वशिष्ठ ने उत्तर दिए, वो नहीं मिलता हमको बहुत ज्यादा डिटेल में तुलसीदास की रामायण में, ना वाल्मीकि की रामायण में. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े महायोद्धा महानायक का उदय हो रहा है, उसकी शिक्षा के बारे में? उसकी वजह यह है कि इस पूरी बात को समझाने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है हमारे पास. राम और वशिष्ठ ने क्या बातें करी, राम ने क्या प्रश्न पूछे, वशिष्ठ ने क्या उत्तर दिए, उसके लिए हमारे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है विच इज लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ रामायण. रामायण में 27,000 श्लोक हैं, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक हैं.
और योग वशिष्ठ इज ओनली अबाउट राम्स एजुकेशन, ओनली अबाउट राम्स एजुकेशन, कि राम ने क्या प्रश्न पूछे, राम के मन में क्या क्या संदेह थे, क्या क्या शंकाएं थी, उनका वशिष्ठ ने क्या क्या उत्तर दिया और कैसे कैसे उत्तर दिया। बहुत बहुत योग वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है, उसको महारामायण भी कहा जाता है, उसको अर्श रामायण भी कहा जाता है। एंड लेट मी टेल यू, इट इज अ वेरी नॉट अ वेरी इजी डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड। ये गीता की तरह एक फ्लो में नहीं चलता है, प्रॉब्ली इसीलिए वो घर घर नहीं पहुंच पाया। एंड इट इज अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट, फैंटास्टिक, देयर आर स्टोरीज एंड मोर स्टोरीज। व्हाई स्टोरीज? बिकॉज कविश, यू नो अ टर्म कॉल्ड पेडागॉजी, एंड्रागॉजी। पढ़ा है बेटा आपने शब्द क्या होता है पेडागॉजी, एंड्रागॉजी? ओके, आपके मैम लोग सबको पता होगा। पेडागॉजी इज द वे अ चाइल्ड लर्न्स, एक बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, दैट इज पेडागॉजिकल वे ऑफ टीचिंग। एंड एंड्रागॉजिकल जो आपकी सेल्फ लर्निंग होती है या एक अडल्ट की लर्निंग होती है, कि अडल्ट बड़े व्यक्ति को कैसे सिखाया जाता है, बिकॉज वी ऑल कंटिन्यू टू लर्न। नाउ राम हैड 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग, पेडागॉजिकल लर्निंग, देन अ मिक्स ऑफ पेडागॉजिकल एंड्रागॉजिकल, एंड देन एन एंड्रागॉजिकल लर्निंग। तो वशिष्ठ के पास जब थे तब वो पेडागॉजिकल लर्निंग में थे। एंड पेडागॉजी मतलब एक बच्चे को आपको सिखाना है, हु इज टोटली अनइनिशिएटेड, जिसको नहीं पता है धर्म के बारे में, जिसके मन में बहुत सवाल हैं, देन यू हैव टू एंगेज हिम इन इंटरेक्शंस, एंगेज हिम इन एक्टिविटीज, एंगेज हिम इन स्टोरीज। इसीलिए योग वशिष्ठ इज लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां योग वशिष्ठ में। विश्वामित्र के पास गए, देन इट बिकम पेडागॉजिकल एज वेल एज एंड्रागॉजिकल। विश्वामित्र ने बताया भी, बट राम हैड टू डू सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एक्सपीरियंसेस एंड जजिंग हिज ओन एक्शन बाय हिज ओन एक्सपीरियंसेस, कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब 13 वर्ष के वनवास में गए, ही वाज स्टिल लर्निंग, he was still a student but totally on andragogical platform where he was self training, applying the teaching learned from Vishwamitra and Vashisht and judging for himself कि जो हुआ वो ठीक हुआ गलत हुआ। तो अभी आप लोग पेडागॉजिकल स्टेट में हैं, फिर आप जब थोड़ा कॉलेज में आएंगे तो प्रॉब्ली पेडागॉजी प्लस एंड्रागॉजी, एंड देन इन द रियल वर्ल्ड इट्स ऑल एंड्रागॉजिकल। तो पेडागॉजिकल वे ऑफ टीचिंग में वशिष्ठ न्यू दैट कि मेरे को कहानियां सुनानी है। एंड राम हैड सो मेनी क्वेश्चन, हर एक संवाद के बाद क्यों आ जाता था कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है। एंड आपने भी देखे होंगे छोटे बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, इतने मतलब जो सवाल हमने सोचे भी नहीं होते। अंजलि मैम, आई वाज वंस टेकिंग अ रामायण वर्कशॉप, ऐसे ही एक 4th 5वीं क्लास की बच्ची ने प्रश्न पूछा कि सर आपने कहा कि रावण को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष का वनवास काटा हो, और आपने ये बोला कि रावण को मारा दशमी के दिन, यानी 14 वर्ष पूरे होने से 20 दिन पहले, क्योंकि 20 दिन बाद 14 वर्ष पूरे हुए जब वो दिवाली के दिन अयोध्या पहुंचे, तो 20 दिन कम रह गए, तो 14 वर्ष तो पूरे ही नहीं हुए, तो राम का 14 वर्ष का वनवास तो पूरा ही नहीं हुआ, तो उन्होंने रावण को कैसे मार दिया। तो ये हमने कभी सोचा नहीं कि बच्चे इतना गणित लगा लेंगे कि 20 दिन शॉर्ट पड़ गया। तो बच्चों के मन में जो सवाल आते हैं, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑफ कोर्स दे ऑलरेडी डू इट, बच्चों के सवाल को कभी रोकना नहीं है, हमको कभी रोकना नहीं है, कभी डांटना नहीं है। आंसर ना कर पाए वो अलग बात है, बच्चों के सवाल को रेस्पेक्ट जरूर करना है, बिकॉज एंटायर योग वशिष्ठ सवाल जवाब, हमको योग वशिष्ठ जैसा इमॉर्टल डॉक्यूमेंट मिला बिकॉज ऑफ राम्स क्वेश्चन। राम वो सवाल नहीं पूछते थे तो वशिष्ठ जवाब नहीं देते थे, और ये डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता। गीता नहीं लिखी जाती अगर सवाल नहीं होते। तो आई ऑलवेज एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, प्लीज सवाल पूछिए विद द पर्पस ऑफ सीकिंग आंसर्स। योग वशिष्ठ के मैं चैप्टर्स के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, बाकी आप उसको पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ कहानी भी सुनाऊंगा। बट लेट मी टेल यू बिफोर दैट कि शायद आपको बात नहीं पता होगी कि राम को जिन वशिष्ठ ने सिखाया, ज्ञान दिया, वो पहले वशिष्ठ नहीं थे। ही वॉज आर्ग्यूएबली 6th or 7th वशिष्ठ। Now this introduces us to a new way of thinking कि जितने भी ये गुरु हैं, जितने भी ये बड़े बड़े टाइटल्स हैं, they are basically titles. The one who sits on that position is called वशिष्ठ। तो सबसे पहले वशिष्ठ ब्रह्मा कहलाए, उसके बाद दूसरे वशिष्ठ आए इक्ष्वाकु के शासन में, फिर दिलीप के टाइम पे एक वशिष्ठ आए, फिर रघु के टाइम पे वशिष्ठ आए। तो दशरथ के टाइम पे 6ठे वशिष्ठ थे या 7वें वशिष्ठ थे, वो राम के गुरु थे। एक वशिष्ठ महाभारत में भी मिलते हैं हमको, जिन्होंने वसुओं को श्राप दिया था। इस तरह कुल 12 वशिष्ठ हुए। तो हो सकता है कि कल को सारांश मिश्रा वशिष्ठ बन जाए, दैट पॉसिबिलिटी स्टिल देयर। अगर वो उतना ज्ञान पा लेता है और वो ज्ञान लोगों को देने के काबिल हो जाता है, तो क्या पता वशिष्ठ बन जाएं। तो बिकमिंग वशिष्ठ, बिकमिंग विश्वामित्र, बिकमिंग परशुराम रामायण में भी है, महाभारत में भी है, और कम से कम 2-2,500 साल का अंतर है दोनों के बीच में। हाउ कैन अ मैन लिव फॉर सो लॉन्ग? बिकॉज दीज आर उपाधिज। यू पास ऑन योर नॉलेज, यू पास ऑन योर विजडम, यू पास ऑन योर स्किल टू योर नेक्स्ट सक्सेसर, एंड देन ही विल बी कॉल्ड वशिष्ठ। रामायण की 6ठे वशिष्ठ ने राम को शिक्षा दी, और इस प्रकार के 12 वशिष्ठ हुए।
और जब राम उनके पास गए ज्ञान लेने के लिए, दशरथ और माताएं बहुत दुखी हुई, पर जाना था ज्ञान लेने के लिए, राम वॉज एवर इंक्विजिटिव। वशिष्ठ उनको अलग अलग एक्टिविटीज में करवाते थे। वशिष्ठ बोल रहे हैं कुंडलिनी योगा होती है, 7 चक्र होते हैं, राम बोल रहे हैं किधर होते हैं, मेरे को दिखाओ। तो वशिष्ठ अपने बॉडी में उनको 7 चक्र दिखाते थे, कैसे एलिवेशन होता है जो आप कुंडलिनी योगा करते हैं। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप सबने 7 चक्र के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो पढ़िए उनके बारे में। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और एक एक करके हमको उनको इग्नाइट करना होता है, और जब आप टॉप मोस्ट को इग्नाइट कर लेते हैं, यू बिकम वन विद द यूनिवर्स, यू गेट द टेस्ट्रल फॉर्म, जिसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, जो स्वामी जी विवेकानंद लिया करते थे। 3 दिन तक बैठे रहते थे, लौट के आ जाते थे, फिर कहाँ होके आए, ऊपर घूम के आया, ब्रह्मांड को देखकर आया। दैट इज कॉल्ड निर्विकल्प समाधि, कि आप अपने आप को देख रहे हैं। रिधि बैठी है और रिधि इज देयर इन द एयर, रिधि कैन सी हर ओन सेल्फ, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म। तो वशिष्ठ ने राम को वो सिखाया, करके दिखाया, राम को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी, बिकॉज पेडागोजिकल ट्रेनिंग चल रही थी। राम और बहुत सवाल पूछते थे। वशिष्ठ ने बोला कि आपको योग करना है। गुरुजी योग क्यों करना है? योग इसलिए करना है ताकि आप करें। गुरुजी धर्म क्या होता है? धर्म हम इसलिए धर्म के पालन ताकि हम मैं पाप करूंगा तो क्या होगा, तो आप जीवन मरण के इस संकट में फंसे रहेंगे। गुरुजी जीवन क्या होता है, मरण क्या होता है? इतने प्रश्न पूछते थे राम, इतने प्रश्न। एंड वशिष्ठ ऑलवेज स्माइल्ड और बड़े धैर्य से उनके उत्तर देते थे। तो योग वशिष्ठ में 6 अध्याय हैं, 32,000 श्लोक हैं। ऑफ कोर्स ना तो मुझे वो आते हैं, ना हमारे पास समय है। एक श्लोक आपको हमेशा याद रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बहुत अच्छा श्लोक है योग वशिष्ठ का। बहुत सिंपल सी थ्योरी बताई। राम ने बहुत सवाल पूछे। राम ने मोक्ष के द्वार के, लिबरेशन के, मुक्ति के बहुत सवाल पूछते थे। गुरु वशिष्ठ ने एक बड़ा अच्छा उनको श्लोक दिया, 4 तरीके बताए जो आपके लिए मोक्ष के द्वार हैं, और ये ऑफ कोर्स सारी बातें गीता में भी हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चरः परिकीर्तिता। ये 4 द्वारपाल हैं राम, मोक्ष के द्वार के, जो मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, इनको साध लो, मोक्ष पाल लोगे। मोक्ष माने लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स। वो क्या बताए? शमो नंबर 1, विचारः नंबर 2, संतोष चतुर्थ, चौथा साधु संगम। क्षमा करना सीखो राम, क्षमा करना सीखो पहला। विचार करना सीखो, सुविचार करना सीखो, चीजों के बारे में सोचो, सोच समझने के बाद फैसला लो। थर्ड बताया संतोष करना सीखो, और राम तो संतोष की प्रतिमूर्ति थे। और चौथा बताया साधु संगम। साधु संगम माने गुणी व्यक्तियों का साथ, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों की बातें सुनना, उनकी बातें सुनने से भी आपका उद्धार हो जाता है। इन 4 बातों को माय डियर किड्स आपको भी साधना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव, बिलीव मी। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, पर फॉरगिव करना जिस दिन आप सीख जाओगे, क्षमा करना सीख जाओगे। सेकंड इज विचार। अपने विचारों को शुद्ध करो, माइंड को अपना फ्रेंड बनाओ, अपने जो मस्तिष्क है उसको अपना दोस्त बनाओ। कृष्ण ने कहा ना गीता में, बंधुरात्मे रिपुरात्मना। जो आपका मस्तिष्क है वो आपका बंधु भी है, दोस्त भी है, और रिपु भी है, आपका शत्रु भी है। सुविचार रखोगे वो दोस्त बनेगा, कुविचार रखोगे वो शत्रु बनेगा। थर्ड बताया संतोष करना सीखो। वो नहीं हो पाता है, हमको हमेशा ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। इतना सैलरी मिला, इतना सैलरी चाहिए, छोटी गाड़ी मिली, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर मिला, बड़ा घर चाहिए, हम कहीं संतुष्ट होते ही नहीं। एंड थर्ड बताया साधु संगम, गुड कंपनी। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेइंग इन इंग्लिश, आरोही, एक इंग्लिश में कहावत है बेटा, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 people that you spend most of your time with। जिन 5 लोगों के साथ आप अपने जीवन का अधिकतम समय बिताते हैं, आप उनके जैसे बन जाते हैं। You become an average of 5 people that you spend most of your time with। आपकी ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स, टीवी वॉचिंग हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स, स्लीपिंग रूटीन, आपका सोचने का तरीका उन 5 लोगों जैसा बन जाता है जिनके साथ आपके जीवन का अधिकतर समय बीत रहा है। Therefore, साधु संगम तो यहां भी आ गया ना कि you have to choose those 5 people very carefully। Now, of course, you can't say कि कल से I won't stay with my parents। No, you can't say that। So you have to choose your friends very carefully। You have to choose your companions very carefully। In business, you have to choose your partners very carefully, because you will be spending most of your time with them, and knowingly or unknowingly आपके अंदर उनके विचार, उनकी आदतें, उनके स्वभाव आ जाएंगे। Therefore, यही कहा वशिष्ठ ने, राम साधु संगम। इसीलिए राम जब 14 वर्ष के वनवास में रहे, ढूंढते रहे कहाँ किस साधु का आश्रम है। अगस्त्य मुनि के पास गए, भारद्वाज मुनि के पास गए, ऋषि अत्रि के पास गए, माता अनुसैया के पास गए। उन सबके पास जाके क्या करते थे? ज्ञान लेते थे। एनलाइटन मी, प्लीज टेल मी गुड थिंग्स, प्लीज टेल मी द वे टू स्ट्रगल इन दिस लाइफ। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योग वशिष्ठ। राम्स क्वेश्चंस and Vashishth's answer.
So dear friends, the structure of Yoga Vasishtha is very interesting. It has lots of stories. 6 chapters it has. Sir, can you repeat the shlok? Oh, Saransh, your wish is my command, beta. Listen to it carefully. मोक्ष द्वारे यानी मोक्ष का द्वार, मोक्ष द्वारे द्वारपालश, उसकी जो द्वारपाल हैं, द्वारपालश चचार, 4 द्वारपाल हैं, मोक्ष द्वारे द्वारपालश चचार परिकीर्तिता, जो उसके बाहर उसकी सीमा पर खड़े हैं, कौन है? शमो विचारः संतोष चतुर्थ साधु संगमः, शमो विचार संतोष और चौथा साधु संगम। ये योग वशिष्ठ में आपको मिल जाएगा। उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं। योग वशिष्ठ की हजारों कहानियों के इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। मैं आपको बताऊंगा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। ये बताया योग में वशिष्ठ ने प्रभु राम को, राम के इस प्रश्न के उत्तर देते हुए। एज आई टोल्ड यू 6 अध्याय, वेयर इट ऑल बिगिंस। अच्छा, योग वशिष्ठ लिखा किसने? वशिष्ठ ने नहीं लिखा, लिखा वाल्मीकि नहीं, लिखा वाल्मीकि नहीं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ और राम के संवाद हुआ। ये आई थिंक 3 दिन पहले कोई पूछ रहा था, सर अरिष्टनेमी कौन है, अरिष्टनेमी कौन है? अरिष्टनेमी की कहानी यहाँ आती है। अरिष्टनेमी वैसे और भी हुए हैं, इवन सहदेव ने अपना नाम महाभारत के अज्ञातवास में अरिष्टनेमी रखा था। जिन अरिष्टनेमी की हम बात कर रहे हैं वो एक राजा थे, बाद में तपस्वी बन गए, बहुत उन्होंने घोर तपस्या करी। जब बहुत घोर तपस्या करी उन्होंने, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो इंद्र ने अपने दूत को भेजा कि ये रथ लेकर जाओ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, अप्सराएं हैं, गुरु हैं, ऋषि हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, जाके उनको अच्छे से एंटरटेन करो और उनको बोलो इंद्र भगवान चाहते हैं कि आपने बहुत तपस्या कर ली, अब आप आइए और इंद्रलोक में रहिए और वहां पर इंद्रलोक के सुखों का आप आनंद उठाइए। तो पूछा अरिष्टनेमी ने कि इंद्रलोक में व्हाट इज द सिस्टम, मैं कहाँ रखा जाऊंगा? विल आई बी एट द हाईएस्ट पेडेस्टियल, स्वर्ग में रखा जाऊंगा, या थोड़ा मुझे मिडिल लेवल पे रहना पड़ेगा, या मुझे नरक में भेजा जाएगा, क्या होगा? ऐसे नो सर, नरक की तो बात ही नहीं है। यू आर अ वेरी वर्चुअस मैन, डिपेंडिंग ऑन योर मेरिट्स, डिपेंडिंग ऑन योर वर्चूज, डिपेंडिंग ऑन योर गुण कर्म, आपको या तो लोएस्ट लेवल पे विच इज स्टिल अ गुड लेवल, या मिडिल लेवल पे जहां पे आप दरबार में बैठाए जाएंगे, या हाईएस्ट लेवल वेयर यू स्टे विद ऑल द लॉर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जनरली क्या होता है कि जब आप लोग को वहां ले जाया जाता है स्वर्ग में, तो लोगों को ईर्ष्या होने लग जाती है। जो मिडिल लेवल वाले हैं वो लोअर लेवल वाले से ईर्ष्या करते हैं, जो हाई वाले हैं वो मिडिल से ईर्ष्या करते हैं, मिडिल वाले हाई को देख के जलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो यू विल बी सेंट बैक टू अर्थ फॉर टू लिव दिस मॉर्टल लाइफ। अब अरिष्ट ने बोला कि मेरे भाई तुम मुझे वापस से चक्कर में फंसाने आ रहे हो, मैं मानव हूं, अगर मैं स्वर्ग में गया मुझे ईर्ष्या भी होगी, मुझे दुख भी होगा, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने दो, तुम वापस जाओ, मुझे ज्ञान की तलाश है, मुझे वो ज्ञान इंद्रलोक में नहीं मिलेगा। इंद्र से कहना अगर पता है ज्ञान कहां मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान चाहिए मुझे, अंतिम ज्ञान चाहिए, तो बता दे। इंद्र ने बोला ही इज अ ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज, ट्रू सीकर ऑफ ज्ञान। वापस भेजा सेवक को कि अरिष्टनेमी को छोड़कर आओ वाल्मीकि के पास, टेल वाल्मीकि कि गिव हिम द ब्रह्म ज्ञान, व्हाटएवर ब्रह्म ज्ञान ही थिंक्स इज सुटेबल फॉर दिस पर्सन कॉल्ड अरिष्टनेमी, इनको ज्ञान दो। एंड इट सो हैपेंड अरिष्टनेमी को छोड़ के आए। वाल्मीकि ने उनके सारे सवाल पूछे, क्या क्या सवाल हैं, अच्छा। देन वाल्मीकि सेड ओनली वन ज्ञान कैन सेटिस्फाई योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, दैट इज योग वशिष्ठ। नाउ लिसन टू योग वशिष्ठ, कि राम ने क्या क्या प्रश्न पूछे और वशिष्ठ ने क्या क्या उत्तर दिए। और इस प्रकार 6 अध्याय पहली बार योग वशिष्ठ के वाल्मीकि ने महर्षि अरिष्टनेमी को सुनाए। बहुत सारी कहानियां हैं, हजारों कहानियां हैं, कुछ 1-2 कहानियां मैं आपको बता देता हूं। पहले तो 6 अध्याय आपको बताया, उन अध्यायों के नाम सुन लीजिए। पहले अध्याय का नाम है वैराग्य खंड, वैराग्य खंड। अब राम का कैसा था ना कि राम अपनी प्रजा में देखते थे दुख है, गरीबी है, अज्ञानता है, तो उनको बड़ा वैराग्य होता था कि मैं राजकुमार हूं तो किस बात का हूं, या कल को राजकुमार बनूंगा तो किस बात का बनूंगा, और इतना दुख अपने आसपास देखकर मैं कैसे अपना कर्म तरीके से कर पाऊंगा। राम वॉज वेरी डिस्टर्ब, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो सबसे पहले गुरु ने उनको डिटैचमेंट सिखाया, वैराग्य सिखाया कि औरों के दुख से खुद दुखी मत हो जाओ, उसको दूर करने की चेष्टा करो। वैराग्य खंड सिखाया। वैराग्य खंड में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे श्लोक हैं। सेकेंड थिंक कि सर मुझे अगर वैराग्य हो गया, देन व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई बिकम, व्हाट शुड आई डू टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। मैं क्या करूं कि मैं मुक्ति के, मोक्ष के मार्ग पर चल पाऊं और मैं जीवों का और अपना उद्धार कर पाऊं। तो सेकंड अध्याय आया, सेकंड खंड आया, जिसका नाम है मुमुक्षु खंड। मुमुक्षु खंड, मेरे मोक्ष का खंड, मुमुक्षु खंड, चैप्टर विच टॉक्स अबाउट बिहेवियर ऑफ सीकर ऑफ लिबरेशन। ही इज स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट लिबरेशन, ही टॉक्स अबाउट बिहेवियर ऑफ सीकर ऑफ लिबरेशन, कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए। अब यहां पे आई टोल्ड यू कि इट इज अ फैंटास्टिक स्टोरी विच हैज टाइम ट्रेवल।
which has metaphysical wonders in it. अंजलि मैम, वशिष्ठ राम को कहानी सुना रहे हैं कृष्ण द्वैपायन की, जो द्वापर युग में हुए थे. नाउ यू लास्ट कि सर ये कैसे हो सकता है, द्वापायन तो बाद में हुए थे, द्वापर युग में. मेरे पास कोई जवाब नहीं है. प्रॉब्ली वशिष्ठ वो त्रिकालदर्शी, वो सब कहती हैं त्रिकालदर्शी थे. राम जी ने पूछा सर कैसा होना चाहिए सीकर का बिहेवियर. He said he should be free from all desire. Sir, how is that possible? वशिष्ठ जी. तो वशिष्ठ ने कहानी सुनाई किसकी? शुक की. शुक कौन थे? कृष्ण द्वैपायन के बेटे थे. शुक की कहानी सुनाई कि शुक ने पूछा अपने पिता से कि सर मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए और ज्ञान मुझे कहां से मिलेगा. पिता ने बोला ठीक है मैं तुमको बातें बताता हूं. पिता ने उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई. सारी बातें सुनने के बाद शुक ने बोला पिताजी ये सारी बातें मैं पहले से जानता हूं. आई नो दीज स्टोरीज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. मेरे को पेडागोजिकल मत दो. आई हैव ऑलरेडी अटेंड एंड्रोलॉजिकल. तो वेदव्यास बोले इसको तो किसी और ज्ञानी के पास भेजना पड़ेगा. तो वेदव्यास ने किसके पास भेजा? तुम जाओ मिथिला नगरी राजा जनक के पास. अच्छा, जनक हैज बीन टर्म्ड एज द वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट किंग एवर. इवन कृष्ण ने भी गीता में कहा है जनकादि राजा, जनक जैसे और राजाओं को ये ज्ञान है. तो उन्होंने शुक को जनक के पास भेजा. जनक को दूत ने बताया कि वेदव्यास का बेटा आया है, आपसे ब्रह्म ज्ञान लेना चाहता है. अब उन्होंने बोला कि भाई इसको पेडागोजिकल काम नहीं चलेगा, इसको मैं कहानियां सुनाऊंगा मानेगा नहीं, मुझे इसको एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा. जनक ने बोला मेक शुक वेट फॉर 1 वीक. 1 हफ्ता उसको इंतजार कराइए. अब शुक 1 हफ्ता द्वार के बाहर खड़े, शांति से खड़े, बिल्कुल शांति से खड़े, कोई उनको परेशानी नहीं है, और इंतजार करा लो. 1 हफ्ता हो गया, द्वारपाल फिर सर अब क्या करना है? टेल हिम टू नॉट वेट एट द डोर, कम इन द इनर सर्कल ऑफ माई पैलेस, स्टिल नॉट इन माई रूम बट इन द इनर सर्कल, वहां 1 हफ्ता वेट कराओ. अब शुक वहां भी वेट कर रहे हैं, कोई चेहरे पर पेशानी पर शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं, वेट कर रहे हैं. ज्ञानी व्यक्ति थे. अच्छा सर अब क्या करना है? अब 1 हफ्ता उनको अच्छे से खाना खिलाओ, सारे व्यंजन दो, अप्सराओं को भेजो, संगीतज्ञों को भेजो, कॉमेडियंस को भेजो, नेटफ्लिक्स दिखाओ, हॉटस्टार दिखाओ, सब कुछ उनको पूरा आनंद दो. ही शुड बी हैप्पी, उनको खुश करके लाओ. अब द्वारपाल बता रहा है सर ना तो वो कुछ खा रहे हैं ना वो कुछ पी रहे हैं, टेलीविजन ऑन नहीं किया, वाईफाई कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं बस. देन जनक सेड इट इज टाइम टू गेट हिम टू मी. तब वो जनक के पास लेकर आया कि शुक तुम्हारे पास पूरा ज्ञान सबसे पहले है, बिकॉज यू डू नॉट सकम टू डिजायर्स, यू डू नॉट सकम टू योर सेंसेस, एंड दिस इज द ब्रह्म ज्ञान. गो टू माउंट मेरू, पर्वत पे जाओ, 11,000 साल तपस्या करो, एंड यू विल बिकम वन विद द यूनिवर्स. एंड दिस हैपेंड. उन्होंने जनक के पैर छुए और ऊपर गए माउंट मेरू पे, 11,000 साल तपस्या करी, एंड ही बिकेम वन विद महाविष्णु. दिस इज स्टोरी टोल्ड बाय वशिष्ठ to whom? To Ram, who's sitting in Treta Yug, story of Dwapar Yug. How to relate I don't know, पूरा शायद पढ़ना पड़ेगा, 3-4 बार तक समझ आएगा. बट कहते हैं कि it was all about time travel. तो प्रोबेबली रामायण महाभारत वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इसीलिए परशुराम रामायण में भी है, महाभारत में भी है. प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस वंस वी रीड मोर अबाउट योग वशिष्ठ, हमको पता चलता है कि टाइम ट्रेवल वॉज पॉसिबल. इनफैक्ट वशिष्ठ ने बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे वायरसेस ऑलरेडी अपने योग वशिष्ठ में लिखे. ही टॉक्स अबाउट हैजा, ही टॉक्स अबाउट कोलरा, द वायरस व्हिच केम फ्यू 100 years ago. पूरी कहानी बताई कैसे एक करकटी नाम की एक राक्षसी थी, उसने पूजा करी कि मैं सुई जैसी बन जाऊं और सुई बन के मैं लोगों का खून पी लूं. तब ब्रह्मा ने बोला सुई तो बन जाओगी बट तुम बीमारी फैलाओगी, यू विल बी कॉल्ड अ वायरस, और उसका ये इलाज रहा करेगा. It is a fantastic document. Talks about science, talks about molecules, talks about metaphysics, talks about a lot of things. And in the end, Vashisht हर बार बोलते थे, still this whole world is just an imagination. He talked about theory of relativity, जो बाद में हमने पढ़ी, आइंस्टाइन ने दी. He said कि this world might have been created just by mistake और जस्ट बाय कोइंसिडेंस. बड़ी अच्छी कहानी उसको बोलते हैं काकटेलिया. काकटेलिया यानी काक यानी कौवा. उन्होंने बोला राम इट इज, इस दुनिया की क्रिएशन शायद ऐसी हुई होगी कि एक कौवा उड़कर गया और एक नारियल के पेड़ पर बैठ गया, और जैसे ही इसने काव किया वैसे ही एक नारियल का फल नीचे गिर गया. अब इन दो घटनाओं में कोई संबंध नहीं है, पर वो इतना इमैक्युलेटली उस टाइम पर हुई है कि एक एपिसोड बन गया, एक घटना बन गई. तो प्रोबेबली महाविष्णु जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, and at that time the entire universe came in sync and the world is created. उन्हें बाद में इसके लिए बहुत सारी कहानियां भी सुनाई. बहरहाल let me finish the chapters first. Chapter 3 is उत्पत्ति खंड. उत्पत्ति खंड, how this world was created. तो यहाँ पर उन्होंने ये कहानी सुनाई कि probably this world was created in the same manner when a crow crows on a coconut tree and coconut falls at the perfect time and we think that something has happened. He said this world is a figment of imagination of Lord. Do you learn from this?
You learn that you create your own world. What you imagine becomes reality one day. मैंने आपको बताया ना, बंधुरात्मे रिपुरात्मना, कि अपने दिमाग में जो आप सोच रहे हैं, it will become reality one day for sure. Now, Krinali, it is very simple to understand, beta. This shirt I am wearing, this watch, this mic, this light, this laptop, ये सब पहले किसी के दिमाग में बना. First somebody thought about it, then it took the physical form. Like the world, first it manifested in the minds of Mahavishnu, then it took a physical form. So you can, Krinali, you can inspire yourself in the manner that whatever is reality today was once a thought. That means whatever is a thought today may become a reality one day. So therefore the safest option is to have good thoughts. बंधुरात्मे रिपुरात्मना. अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा भी जरूर होगा. You create your own world. कल्पतरु कहीं और नहीं है, कल्पतरु आपकी बॉडी के अंदर है. You are your own wish tree. You grant yourself what you wish. Therefore, first wish something right. Wish very passionately. And this is what he told Ram in Yoga Vasisht. This world is the imagination of Mahavishnu. Similarly, Ram, you can create your own world with your imagination. और ये बात कब की है? कितने हजार साल पहले की, और अभी 60 साल पहले किताब आई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है उसको. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड. अरे वशिष्ठ ने बात 9000 साल पहले बोली. योग वशिष्ठ उठाओ तो पढ़ो तो उसको. He said you create your own world. Chapter number 5 is स्थिति खंड. स्थिति खंड एक बार बन गया तो how does it exist? इसकी स्थिति कैसे निश्चित होती है? Who rules the world? Truth related to existence of the world and various substances of the world. Then वशिष्ठ ने बताया श्री राम को कि राम, जो दुनिया है, तुम्हारी बॉडी है, everything has been created by 5 elements. 5 elements. What are the 5 elements? हमको पता है अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, ये 5 एलिमेंट्स हैं. एंड राम आस्क कि गुरुदेव मैं कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स बैलेंस में हैं कि नहीं है? तो वशिष्ठ एक्सप्लेन्स वेरी आर्टिकुलेटली, whenever you are troubled, that means the balance has been lost. Whenever you are frustrated, that means the balance has been lost. Whenever you have some bodily pain in your body, that means the balance has been lost. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैलेंस वापस लेकर आना है. You have to make sure that the 5 elements come back to the immaculate balance, right balance. Now, this life is all about balance, Anjali ma'am and all the kids. And the simplest way to understand this कि आज हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है ये मत खाओ, चीनी मत खाओ, दूध मत पियो. Nothing edible in this world was created for not eating. It was created for eating, but eating in the balanced manner. अगर लाइफ के पहले 30 साल इतना शुगर खा लोगे तो बाद के 30 साल शुगर छोड़ना ही पड़ेगा ना. Because we lose the balance. Nothing edible was created for only for showing कि ये खा सकते हो बट खाओगे नहीं. वो खाने के लिए ही बनी थी, बट हमने बैलेंस लूज कर दिया. राम सेड, गुरुदेव हाउ विड आई गेट दैट बैलेंस बैक? मैं क्या करूं इफ आई रियलाइज कि मेरा बैलेंस चला गया है तो मैं क्या करूं? गुरुदेव ने एक मंत्र दिया, सिंपल सा मंत्र. क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. इसको 6 पार्ट में ब्रेक कर दो. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. उन्होंने बोला कि ओम इज यू, ओम इज योर सोल, ओम इज योर सोल. न मीन्स धरती, म मीन्स जल, शी मीन्स अग्नि, वा मीन्स वायु, और य का मतलब आकाश. ओम नमः शिवाय. तो जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बेसिकली वी आर इन्वोकिंग द पावर्स ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स. जितनी बार उस मंत्र को बोला जाए पैशनेटली, डेफिनेटली इट ब्रिंग्स बैक द बैलेंस. रामने जी ने बहुत बार ओम नमः शिवाय बोला बिकॉज ही न्यू दैट दिस इज नॉट जस्ट अ डिवोशनल मंत्र, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग बैक द बैलेंस इन योर लाइफ ऑफ व्हाट? ऑफ 5 एलिमेंट्स. Om is you. Bring back it to me, to my soul. Om is your soul. Na means dharti, ma means jal, she means agni, va means vayu, ya means akash. Om Namah Shivaya. कोई पूछ रहा है सेकंड. ओके, मैं दोबारा बता देता हूं. फर्स्ट वाज वैराग्य खंड, सेकंड वाज मुमुक्षु खंड, मुमुक्षु खंड, थर्ड इज उत्पत्ति खंड, क्रिएशन, फोर्थ इज स्थिति खंड, स्थिति. फिफ्थ में उन्होंने राम के सारे डिसोल्यूशंस, जो डिल्यूजन्स हैं, उनको दूर किया. राम से नो टू ऑल द डिल्यूजन्स. इट इज कॉल्ड उपासमा. उपासना नहीं, उपासमा खंड, उपासमा खंड या उपासम खंड. उपासम जो डिल्यूजनल परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, रिलेशनशिप्स हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, पाना है, खोना है, इन सब से दूर हो जाओ राम. whatever is delusional, whatever is trying to deviate you from your path of karma, path of dharma, उसको समझो, understand that. And the final one, जब सब समझा दिए, then he told him about liberation, that is called Nirvan Khand. Nirvan Khand.
इसके दो हिस्से हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध. निर्वाण खंड इन 2 पार्ट्स, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध. और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योग वशिष्ठ. 6 चैप्टर हैं, हजारों कहानियां हैं. उन कहानियों को जब आप पढ़ना शुरू, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड. उसमें उन्होंने बाली की कहानी भी सुनाई है, नॉट द वानर बाली, महाबली, जो महाबली थे, जिनको बाली, जो रावण के पूर्वज थे, उनकी कहानी सुनाई है. वामन अवतार में जब आए, उन्होंने प्रहलाद की कहानी सुनाई है, हिरण्यकश्यप की कहानी सुनाई है, हिरण्यकश्यपु की कहानी सुनाई है. ऑल दो स्टोरीज. सो एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट गो. इसके छोटे छोटे ट्रांसलेशंस एक एक खंड के इन स्टोरी फॉर्म आर अवेलेबल. प्लीज उनको पढ़िए. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट व्हाट Ram asked and Vashisht answered, and all in the form of stories backed by the philosophy. It was not just storytelling, stories backed by eternal philosophies, जो आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर करते हैं. अंजलि मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम. मैं पूछना चाहती थी, मुझे ये, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, बट मैंने ये सुना था कि योग वशिष्ठ तब दी गई थी श्री राम को जब वो बहुत डिस्पॉन्डेंट हो गए थे सीता जी को आश्रम भेजने के बाद, त्याग करने के बाद. इसमें उनके बाल्यपन, पेडागॉजी नहीं है, इसमें बाद का है, जब वो डिस्पॉन्डेंट हो गए थे, जब बहुत पेन में थे कि सीता का मुझे त्याग करना पड़ा. मैम, माय रिसर्च टेल्स invariably that it was in his teens years when he was probably, we both may be right or probably I can go back and correct, but जितना मैंने पढ़ा है, it is invariably it is written in all the translations also कि उनके शिष्य के काल में बताए गए थे. बट व्हाट यू सेइंग मे बी पॉसिबल, प्रॉब्ली तब शायद उसकी ज्यादा नीड पड़ी हो इस ज्ञान की, और प्रॉब्ली मे हैव बीन रिपीटेड. हाँ, मैंने जो वशिष्ठ आश्रम में जो उन्होंने पढ़ा था, वो योग वशिष्ठ में, I think योग वशिष्ठ is meant for much later in life, and this is not the age for children to be. Probably. I don't think this is the right age for. So far, I am confident that it is in the school time only, because काफी जगह पर मैंने ट्रांसलेशन पढ़े हैं, फिजिकली भी एंड ऑनलाइन भी. I'll still go back and check, and अगर उसमें कुछ correction है, I'll definitely tell the kids. All right. So these are the 6 chapters that we are going to talk about, that we have talked about, and the kind of answers, the kind of questions Ram had, and the kind of answers Vashisht gave. But since these are in the form of stories, they are relatable. You understand characters more than the philosophies, especially at this age. So whenever possible, whenever accessible, in whatever form, please make this document accessible to your own self and see what all can you draw from it. As I told you, it will take you time. You will grow gradually with this document, but this happens with all the great documents, with Gita, with Ramayana, with Mahabharata. So Ram had a very curious period of education, very curious period of learning, and the simple message to you all from Yog Vashisht is, you also be curious, you also pose questions status quo, and definitely you will find your answers. So this was my brief discourse on Ram as a student and Vashisht as a teacher. Student और teacher का जो रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, because हमारे इतिहास में teachers have defined students and students have defined teachers. दोनों हैंड इन हैंड चले हैं और इतिहास को बदला है गुरु शिष्य की बहुत सारी जोड़ियों ने, चाहे वो वशिष्ठ और राम हो, चाहे वो द्रोणाचार्य और अर्जुन हो, चाहे वो इन लेटर ईयर्स रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद हो. अ कपल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दे हैव डन वंडर्स. तो यू ऑल हैव ग्रेट टीचर्स जो आपके साथ हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हैं. उनसे जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछिए, विद द पर्पस ऑफ सीकिंग आंसर्स. बट स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, asking a question should not necessarily mean making the teacher agree with what you're saying. हमारी इंटेंशन होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ टीचर हमको उस बात में हाँ में हाँ मिला दे. टीचर का काम वो नहीं होता. टीचर का काम आपको करेक्ट करना होता है, आपको नया सिखाना होता है. So ask a question with the purpose of asking the question. So this was in brief about Yog Vashisht and Ram's education. So I have few books to tell you. तो पहला मुझे बता दीजिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है ऑलरेडी. एक बार टाइप कर दीजिए. What all books have you read already in Ramayana, not general Ramayana में? Ramayana by बुलबुल शर्मा, okay. रामचरितमानस, अरे वाह, okay. अमर चित्र का था, वाओ, वेरी गुड. मैंने आज आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत किया, अपनी लाइब्रेरी से किताबें निकाली हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. So the first book which I recommended you the other day as well is this box set. It is a set of 6 books. अमर चित्र कथा, ऐसा ही सेट महाभारत के लिए भी आता है. तो ये आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए. एंड ये लगता है कि ये तो कॉमिक बुक है. इट इज सच अ फैंटास्टिक बुक. वाल्मीकि की रामायण का इतना कमाल का समरी है इसमें,
with all the lessons, with all the theories, with all the philosophies. This is अमर चित्र कथा का 6 बुक्स का सेट है. प्लीज नोट कर लीजिए. पब्लिशर इज अमर चित्र कथा ओनली. इट्स अ 6 बुक सेट इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स. बहुत, और इतने कमाल की स्केचेस हैं, इतने कमाल की पिक्चर्स हैं, ऐसा लगता है कि आप एक मूवी देख रहे हैं. यस, दिस इज नंबर 1. नंबर 2, आई ऑलवेज मोटिवेट यू ऑल टू बिगिन विद वाल्मीकि's रामायण. उसको आपको शुरुआत करना है. और आप लोग तो 8th और 9th और 10th में आ गए हैं. इट इज द राइट टाइम टू रीड द ट्रांसलेशंस ऑफ Valmiki Ramayan. The translations that I generally recommend is one is this. Yes, this is a 3-book set by Vivek Debroy. 3-book set. It is as it is translation of Valmiki's Ramayan, as it is. No interpretations added. So this is a good source. Interpretation आप खुद कीजिए ना, तो एक बार खुद पहले पढ़ लीजिए. 3 किताबों का सेट है मैम. ये थोड़ा सा अगर आपको as it is की जगह थोड़ा कहानी फॉर्म में पढ़ना है वाल्मीकि की रामायण विदाउट चेंजिंग द फैक्ट्स बट इन स्मॉल चैप्टर्स फॉर्म, मोर इन नॉवल फॉर्म, तो ये किताब आप पढ़िए. 2 किताबों का सेट है बाय रमेश मेनन. द रामायण वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. इट इज अगेन वाल्मीकि's रामायण बट मोर इन अ स्टोरी फॉर्मेट. चैप्टर्स बनाए हैं छोटे छोटे, कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्लेन किया है, कहानी की तरह समझाया है. फैंटास्टिक बुक बाय रमेश मेनन. एंड आई टोल्ड यू अबाउट द 2 more बुक्स जो वाल्मीकि ने ही लिखी, उनको तो जरूर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा. बट फर्स्ट फिनिश द वन आई टोल्ड यू जस्ट. ये अद्भुत रामायण बाय वाल्मीकि, ये छापी है मैम सीताराम पुस्तकालय ने छापी है, मथुरा वाले हैं ये. सीताराम पुस्तकालय अद्भुत रामायण ये है. इसको जरूर आप प्लीज प्रोक्योर कीजिए, अपनी लाइब्रेरी में रखिए. ये आनंद रामायण अगेन बाय वाल्मीकि, ये बनारस से किताब छपती है. इसका नाम है रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन वाराणसी. रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन वाराणसी. ये है आनंद रामायण. ये पढ़ने के बाद यू शुड बी थ्रू विद वाल्मीकि. उसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस विद हिंदी ट्रांसलेशन, जो वो मेरे पास अभी नहीं है, आई कांट शो इट टू यू, वो जरूर पढ़िए. तो आपको रामायण के 2 मोटे मोटे वर्जन जिनमें आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे. आई एम टेलिंग यू, बहुत फैक्ट्स में डिफरेंस है. अहिल्या की कहानी वाल्मीकि ने कुछ और बताई है, तुलसीदास ने कुछ और बताई है. वाल्मीकि ने राम को कभी भगवान नहीं बोला, और तुलसीदास की बुक का तो नाम ही रामचरितमानस है, भगवान कहा है उनको. कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ ठीक है. ऑलराइट, नाउ वंस वी आर थ्रू विद वाल्मीकि एंड तुलसीदास, तो आप ये पढ़ सकते हैं. ये कंबन की रामायण है, कंबन रामायण. ये साउथ की रामायण है, बहुत अच्छी रामायण है. ये मैम पेंगुइन ने छापी है, द कंबा रामायण. हैविंग रेड द बेसिक्स कि जो हमको बताया गया स्क्रिप्चर्स में, now let me tell you about a couple of true gems of the books which you must never miss. एक तो you must read, this is a fantastic work of art ma'am. अंजलि मैम आज ही मंगा लीजिए. This is the illustrated Ramayan. The illustrated Ramayan, देखिए, it's a beautiful book. It has paintings, photos of sculptures from all over the world, and they have put them in a series. The story of Ramayan goes on with beautiful paintings and scriptures. ये इसका नाम है द इलस्ट्रेटेड रामायण, डीके. ये डीके लिखा हुआ है, पब्लिशर. आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू द वेद व्यास ऑफ टुडे. अगर आप उनको नहीं जानते हैं, अभी उनका लास्ट मंथ देहांत हो गया कोरोना से. नरेंद्र कोहली. अगर आपने नरेंद्र कोहली को नहीं पढ़ा, आपने किसी को नहीं पढ़ा. नरेंद्र कोहली ने राम को अमर कर दिया था अपने इस उपन्यास से, जिसका नाम है अभ्युदय. अभ्युदय, इनको मैं आज के समय का वेद व्यास बोलता हूँ. ये 2 किताबों का सेट है मैम, अभ्युदय. डायमंड पॉकेट बुक्स ने छापा है. अब ये 1 बुक की फॉर्म में भी आने लगा है, जिसका नाम है राम कथा. दोनों को चिपकाकर एक मोटी किताब बना दी है. आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं. अभ्युदय बाय राम नरेंद्र कोहली, ये 2 किताबों का सेट है. और जब हम महाभारत की वर्कशॉप करेंगे तो आपको बताएंगे कि महाभारत के बारे में इन्होंने 9 किताबों की सीरीज लिखी थी. महासमर, माय फेवरेट, राम की शक्ति पूजा. और दिस बुक हैज द वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट पोएम. इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा. इसमें अलग अलग ऑथर्स ने राम की शक्ति पूजा को कैसे इंटरप्रेट किया है. वो है इन सर्च ऑफ सीता. इन सर्च ऑफ सीता. इसमें सीता के बारे में वेरियस स्कॉलर्स ने जो जो लेक्चर्स दिए, डिस्कोर्सेस दिए, जो बातें कही. इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स. इन सर्च ऑफ सीता बहुत ही प्यारी बुक है. पेंगुइन ने छापी है. ये एडिट किया है मलयश्री लाल एंड नमिता गोखले. नमिता गोखले तो आप सब जानते हैं, बहुत एस्टेब्लिश्ड ऑथर हैं. इन सर्च ऑफ सीता पब्लिश बाय पेंगुइन. इन सर्च ऑफ सीता. नरेंद्र कोहली की अहिल्या बहुत प्यारी है प्रोमनी मैम. नरेंद्र कोहली की अहिल्या बहुत सुंदर किताब है. बहुत अच्छे से अहिल्या को बताया है नरेंद्र कोहली.
अगर आप पूछे मॉडर्न राइटर्स में से, देखिए आप देवदत्त को भी पढ़ सकते हैं। देवदत्त की किताब है सीता, इट्स अ नाइस स्टोरी फॉर्म में देवदत्त ने सीता लिखी थी, तो देवदत्त की रामायण कम्स इन द फॉर्म ऑफ सीता ओनली। और एक छोटी सी बुक है द बुक ऑफ राम, ये दोनों आप ले सकते हैं, सीता बाय देवदत्त, देवदत्त पटनायक। एंड द बुक ऑफ राम में कुछ खास नया नहीं है, वो एक कोलोकियल जो स्टोरी है वो है। दिस इज अ गुड बुक, सीता बाय देवदत्त पटनायक। आई विल से अवॉइड अमीश अभी के लिए, मैम बच्चों को अमीश मत पढ़ाइए अभी के लिए, बहुत ज्यादा वो इंटरप्रिटेशन और इमेजिनेशन कहीं और ही चले जाते हैं। चले गए। अगर मॉडर्न पढ़ना है, यू कैन स्टिल रीड असुरा एंड वानरा बाय आनंद नीलकंठन। वानरा टॉक्स अबाउट बाली, सुग्रीव एंड तारा, असुर टॉक्स अबाउट रावण एंड मेघनाथ। असुरा एंड वानरा, आनंद नीलकंठन, ये वो है जिन्होंने बाहुबली फिल्म लिखी है। बट दीज आर फ्यू विच आई हैव बीन रीडिंग फॉर पास्ट मेनी ईयर्स। तो किड्स जो आपको ठीक लगे, सारी एक साथ मत मंगा लीजिएगा वरना आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। फिर एक पढ़िए, उसको फिनिश कीजिए, फिर गो टू द सेकंड वन। दिस हैज टू बी द राइट वे। So which should be the first, the अमर चित्र कथा और some other? Yes, अमर चित्र कथा should be the first. Very easy, very interesting, मजा आता है, आप जुड़ जाते हैं क्योंकि आपको फेसेस दिख जाते हैं ना, आपको कलर दिख जाते हैं जी। Now the questions are most welcome, please. Sir, I want to ask a question from like previous session. Sir, you told that in a war, when we are there in a war, we should like find our own personal reason to like be a part of that war. So sir, in helping others, should we all find our reasons to help them, or like we should help them without any reasons? Yes, रिद्धिमा आपने अच्छा सवाल पूछा है कि if I want to help somebody, should there be a personal reason behind that? रिद्धिमा, there should always be a personal reason, but do not confuse personal reason with personal motive. आपका पर्सनल रीजन शुड बी दैट आई वांट टू बी समबडी, रिद्धिमा वांट्स टू बी समबडी हु ऑलवेज एक्सटेंड्स द हैंड ऑफ हेल्प टू द वन हु नीड्स इट. दैट इज माय पर्सनल रीजन. I am not doing it for anybody else, but for my own consciousness, for my own transformation. That should be a personal reason. If I don't do it, I will be an incomplete person, incomplete soul. And I do not want to become an incomplete person. मुझे अपने आप को complete करना है, and that can happen only by helping others. That becomes your personal reason. Your personal uplifting, your personal transformation becomes your instrument of helping, protecting others. Right, Riddhima? So personal is not selfish. Selfish is when you're prepared to harm others as well, prepared to snatch their goods, their properties. Don't do that. Personal reason is uplifting my own soul to a higher level. So could we say that the personal reason is something what you're trying to say is that I cannot bear the injustice that is being done. So I cannot but take the side of the right. मेरा दिल मानेगा नहीं जब तक मैं उसका साइड नहीं लूं और अधर्म को फिनिश ना करूं. I want to be part of that. Perfect. मैम ने बिल्कुल सही बोला. Like we said yesterday, मैं तटस्थ नहीं हो सकता. अगर अन्याय हो रहा है तो मैं चुप बैठ ही नहीं सकता. And this is my personal reason. हाँ. मुझको धर्म स्थापना करनी ही करनी है या उसमें कंट्रीब्यूट करना ही करना है. That is my personal reason. मुझे पूछना था जैसे कि एक और रीजन था जो स्टार्टिंग हुआ था कि राजा दशरथ को दिया गया था कि कर्ज, तो वैसे ही राम जी को भी दिया गया था कि अगर वो सीता के साथ रहे तो सीता जी की मृत्यु हो जाएगी. ऐसा कुछ श्राप दिया गया था राम को, या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैंने एक जगह पढ़ चुका ऑडियो बुक में. बेटा वो आपने ये सुना होगा कि जो विष्णु है उनको 2-3 श्राप थे कि जिस प्रकार आपने मुझको मेरे पति से अलग किया है, इसलिए आप भी अपनी पत्नी से अलग होगे अगले जन्म में. विष्णु हैड accumulated a couple of श्राप्स. उन श्राप की वजह से कहा जाता है कि सीता लोग हैं. बट मेरा हमेशा से जो डे 1 से बोल रहा हूँ, आप उन बातों में ना जाइए वरना आप सीता के परित्याग को श्राप की वजह मान लेंगे कि श्राप था इसलिए दूर हुई. आप मानिए बिकॉज अयोध्या में बहुत कुछ गड़बड़ थी जो ठीक होनी चाहिए थी, वो ठीक होगी तो सीता जी को आना पड़ेगा वापस. यू बिलीव इन दैट थिंग, दैट विल इंस्पायर यू मोर. अदरवाइज यू विल जस्ट रिजाइन टू श्राप एंड वरदान कि श्राप मिलेगा तो बुरा होगा, वरदान मिलेगा तो अच्छा होगा. Believe in action, your action, right, Shlok? Sir, Ravan had those 3 wishes that he would like to fulfill in his lifetime. But why didn't he did that in his lifetime? He had a whole lot of 30 to 40 years. Which there's a big disease that we all suffer from, that is called procrastination. Procrastination. हम आज का काम कल पर डालते रहते हैं कि ये काम तो कल हो ही जाएगा, ये काम तो कल कर ही लेंगे. एंड वी नेवर प्रायोरिटाइज आवर वर्क. एज अ स्टूडेंट वी डू दैट अ लॉट, एज अ कॉर्पोरेट वी डू दैट अ लॉट, एज एन आर्टिस्ट आई डू दैट अ लॉट. कोई स्क्रिप्ट लिखना है, कोई पोएम लिखना है, अरे माइंड में थॉट तो आ ही गया है, लिख ही दूंगा, कल लिख दूंगा, परसों लिख दूंगा. विच शुड नॉट बी डन. If it is something which is good, something which should benefit others,
then it has to be done immediately. Ji Divyansh. Sir, that Ram ji came in form of Krishna ji. So, sir, how were Mahabharata and Ramayana were going side by side? Beta, I didn't say, I just thought of a possibility कि शायद ऐसा हुआ होगा, because Vashisht is telling Ram about Krishna Dwaipayan who happened to come on this earth 2000 years later, but he is telling Ram about him, so probably either he could see future or they were happening side by side. I just thought of a possibility. I'm not saying ऐसा हुआ ही होगा, but कुछ तो है जो हमको समझ नहीं आ रहा है. Everything is not clear on day one till we realize that this धरती was गोल. We thought कि धरती चौकोर है, जबकि हमारे तो ज्योग्राफी का नाम ही भूगोल था, उसका नाम ही था भूगोल है. हमने नाम तो देखा नहीं और हम मानते रहे कि भूगोल नहीं भू चौकोर है, पढ़ भूगोल रहे हैं और बोल रहे हैं भू चौकोर है. जब बाद में पता चला वो गोल है तो वो गोल हो गई. तो हर चीज हमको आज नहीं पता है, कुछ चीजें कल भी क्लियर होंगी, and then we shall start talking about them. Right, Divyansh? There's a question. Ram was so virtuous, so righteous, but still he had to face exile from home, separated from his family and wife, fought battles, deprived from his son's childhood. Why so? Why so? Because Ram, Krishna, they all come on earth to inspire you the way you are. Had they come like a Superman flying from the sky, killing Ravan, gone back, you will keep waiting for Superman always. कि सुपरमैन आएगा हमको बचाएगा. राम ने बोला कोई सुपरमैन नहीं है, तुम ही सुपरमैन हो. देखो मैं आया, मैंने कितना कष्ट सहा. राम ने, कृष्ण, सबने कष्ट सहे हैं. जंगल में भी गया, बीवी को उठा के लेके गया, लड़के लाया, फिर छोड़ना पड़ गया, बच्चे मेरे साथ नहीं रहे. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एंड दीज आर स्ट्रगल्स वेरी सिमिलर टू आवर स्ट्रगल्स. हम भी तो ये फेस करते हैं. हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है. बनना चाह रहे थे युवराज, भेज दिया जंगल में. जंगल में 50 प्रॉब्लम आ रही हैं. तो राम सेड लाइक यू हैव स्ट्रगल्स, I also face struggles without breaking my maryada. So his job is to inspire us. Otherwise, it's all theater. It's all Leela. Leela means theater. Leela means performances. Ram came, performed like you watch a good movie and you aspire कि यार मेरे को भी ऐसा बनना है. You watch स्वदेश and say कि मेरे को भी शाहरुख की तरह अपने देश का भला करना है. So this is a Leela. This is a theater. You look at Ram, get inspiration from him, and inspiration will come only when you relate with Ram. He was also a man. Why do you think that Indian Idol जैसे शो बड़े बन जाते हैं? Because you see a boy like you studying in a school like Jaipuria in 10th standard, he becomes India's biggest star. That child will inspire you more than A.R. Rahman does. आप बोलते वो तो महान आदमी है, बड़ा सिंगर है, but somebody rising, you know, from rags to riches, from nobody to somebody. Ram rose from nobody to somebody, and this is what inspirational about him. So Ram didn't come to live a luxurious life of without any problems. He came to teach us that there will be problems. You have to struggle through them, keeping your maryada intact. That is why he faced all these struggles, beta. Sir, you said that if someone says कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, सर मतलब उसके अंदर जरूर से अहंकार है. और सर अगर जैसे फिर उसके लिए हमें एक चीज प्रैक्टिस करके ध्यान में रखनी चाहिए कि निमित्त मात्रम भव, फिर अपना नाम जैसे दिति. तो सर अगर कोई कह रहा है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर अहंकार है, तो सर इफ आई एम एक्सेप्टिंग, तो सर फिर उसके लिए हम लोग को कौन सा पाथ चूज करना चाहिए दैट वी कैन गेट रिड ऑफ इट एंड देन वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो एक पार है, उसकी वजह से हो रहा है, मैं उसका एक सोर्स हूँ बस. So Riddhi, the best thing is that you have accepted you have a disease. डॉक्टर के पास आधे लोग आते हैं, पता ही नहीं दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है. डॉक्टर साहब परेशानी हो रही है. अरे क्या परेशानी है बताओ तो. अजीब लग रहा है. क्या अजीब लग रहा है? इफ डॉक्टर नोस की बीमारी क्या है, आप बता पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, वरना वो आपको इतने सारे टेस्ट लिख के दे देगा कि टेस्ट करा के आओ. गुड थिंग इज यू रियलाइज्ड कि आपको अहंकार हो जाता है. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी केयरफुली व्हाट कॉजेज दैट अहंकार. व्हाट कॉज, आपको अहंकार क्यों हो रहा है? आपकी अपनी एजुकेशन पे हो रहा है, अपनी अपब्रिंगिंग पे हो रहा है, या आपको अपनी वेल्थ पे हो रहा है, अपनी लुक्स पे हो रहा है? किस चीज पे अहंकार हो रहा है? एंड द डे यू रियलाइज कि जिस चीज पे अहंकार हो रहा है दैट इज सो फ्रिवलस, दैट इज सो ट्रांजिटरी, यू नो, दैट इज सो स्मॉल, एंड यू रियलाइज दैट बिगर इज थिंग इज माई सोल, बिगर थिंग इज माई कनेक्शन विद द गॉड, बिगर थिंग इज माई सबमिशन ऑफ ऑल माई ड्यूटीज टू माई गॉड. वो अहंकार अपने आप वैनिश हो जाएगा. इसीलिए मैंने बोला ज्ञान ही निदान है. नॉलेज इज द ओनली साल्वेशन. द मोर नॉलेज यू गेट, द लेस अहंकारी यू विल बिकम. राइट? एंड नॉलेज किताबों में नहीं, लेकिन ये जो बुक्स दिखाई, परचेज करके फोटो भेज दिया कि देखो मैंने सारी बुक्स खरीद ली. खरीदने से क्या होता है? वो तो दुकान पे भी ऐसी पढ़ी जैसे यहाँ पढ़ी है. उनको पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है. तो ज्ञान एक्वायर नहीं करना है, ज्ञान को समझना है, फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है बेटा. ओके.
सर आपने ये तो बता दिया कि सीता माता क्यों चली गई थी राम से दूर, लेकिन फिर एंड में मैंने देखा था कि जब सब कुछ हो गया था तब राम जी विष्णु जी के अवतार में क्यों चले गए थे? आपने देखा था? ये दिव्य दृष्टि कहाँ से मिल गई आपको अक्षय जी कि आपने देख लिया? कहाँ देखा आपने? सर मैंने टीवी पे देखा था। अच्छा, टीवी पे देखा था। इस सवाल का जवाब अक्षय मेरे को देगा कि राम महाविष्णु के रूप में वापस क्यों चले गए। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्यों गए होंगे? जैसे कि सीता माता चली गई तब वो भी चले गए। Because his job on this earth was over, you know, he had inspired us, and क्या होता है कि मम्मी आपको एक लिमिट तक खाना देती ना, चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना हो, पहले इसको पचा लो और भूख लगी और खाना दूंगा। स्वामी जी विवेकानंद का आपने सुना होगा। विवेकानंद जी ने क्या करा? अक्षर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि विवेकानंद ने 35 साल की उम्र में कह दिया अपने दोस्त को कि अच्युतानंद, मैं 40 साल का होने से पहले इस धरती को छोड़ जाऊंगा, आई विल नॉट लिव अप टू बी 40। एंड हिज फ्रेंड वाज सरप्राइज्ड कि आप अभी 35 साल के हो, यू आर सो यंग, एंड आप बोल रहे हो कि आप 40 साल से पहले चले जाओगे, व्हाई सो? ही सेड, बिकॉज मैंने जो ऑलरेडी कह दिया है वही समझने में लोगों को 1000 साल लगेंगे। इफ आई कीप ऑन टेलिंग देम मोर मोर मोर, दे विल लीव दिस ऑल्सो। तो राम जी ने जितना सिखाया पहले हम उसको सीख लें, उस पर चलना शुरू कर दें, वो फिर से लौट के आ जाएंगे। वो तो उनका, उन्हीं का सब कुछ, टॉप फ्लोर भी उनका, ग्राउंड फ्लोर भी उनका, वो लिफ्ट लेके नीचे आ जाएंगे। बट ही वॉन्ट्स अस टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो मैंने करा है उसको समझो, उसको फॉलो करो। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय होम, वंस यू नीड मोर एजुकेशन आई विल कम बैक। तो उनकी एजुकेशन पूरी है, हमारा उसकी अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में थोड़ा भी कमी है अक्षर, राइट? Sir, when Ravan performed yagna for Sri Ram, who made it possible? Because they both were enemies for each other. And Arohi is taking us to a folk story जो रामेश्वरम से जुड़ी हुई है। रामेश्वरम में ऐसा हुआ, when राम जी को बोला समुद्र ने कि you please make a bridge. You asked Nal Neel, the great architects, to make a bridge on Sagar. Then Ram said, and everybody suggested that we are going to do such a, you know, industrious work which will be remembered for generations to come. Let us do that by invoking gods, you know, by invoking the divine. जैसे मैम ने भी उसी ने बोला कि we should invite divine to guide us in all the difficult things that we do. तो राम ने बोला कि मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की पूजा करना चाहता हूँ, and महादेव will guide us through in this job. Now the question came कि शिवलिंग की स्थापना आप करोगे कैसे? Why? Because in those times you had to do things in the right manner. शिवलिंग की स्थापना सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, and राम ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, बाकी लोग वानर थे, कोई भालू था, कोई गिद्ध था। ये पूजा करेगा कौन? You need a proper ब्राह्मण to do the पूजा. Then somebody informed him कि यार you should send somebody to रावण। पूरा नहीं, आधा ब्राह्मण तो है कम से कम वो, और तो कि ब्राह्मण मिलने सर आया लंका के आसपास या साउथ इंडिया में ब्राह्मण तो नहीं मिलेंगे, इट्स ऑल फॉरेस्ट एरिया। कॉल हिम एंड ही विल कम एंड डू योर पूजा। रावण के पास इन्विटेशन पहुंचा, सबने मना किया मत जाओ, इट माइट बी अ प्लॉय, इट माइट बी अ ट्रिक। रावण सेड अगर शिव की पूजा का आह्वान हुआ है, रावण मना नहीं करेगा, बिकॉज रावण राम का, शिव का भक्त है। तो ऐसा कहा जाता है, इट्स अ फोक स्टोरी, कि रावण आया, राम को बोला कि मुझे पता है तुम किस लिए ये यज्ञ करवा रहे हो, बट शिव की पूजा की बात है, मैं यज्ञ करवाऊंगा। एंड रावण प्लेड अ ट्रिक अगेन कि राम अपनी पत्नी को ले आओ। राम सेड पत्नी को ले आओ? ही सेड हाँ, बिकॉज तुम ब्याहता हो एंड विवाह के समय आप 7 वचन देते हो, उनमें एक वचन ये भी होता है कि मैं बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं करूंगा, गेट योर पत्नी। एंड राम इज लाइक कि क्या मजाक कर रहे हो, माई पत्नी इज एब्डक्टेड बाय यू, व्हाट शुड आई डू? तो ऐसा कहा जाता है, फोक स्टोरी है, कि रावण का पुष्पक गया, सीता को लेकर आया, दोनों ने उसको देखा नहीं, ना सीता ने राम को देखा, ना राम ने सीता को देखा, सीता जस्ट सेट देयर, यज्ञ हुआ, रावण सीता को लेके वापस चला गया। ये रामेश्वरम की एक जो कहानी है, फोक कहानी है, कही जाती है कि रावण ने खुद अपने खिलाफ होने वाले युद्ध के आह्वान का यज्ञ करवाया, बिकॉज उसने अपने पंडित धर्म को निभाया। दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी बेटा आरोही, जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि श्री राम इसीलिए चले गए क्योंकि उनका धरती पे जो एक्चुअली एक ड्यूटी थी वो पूरी हो गई थी, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो सब प्री प्लान था, जैसे कि वो सब जो था हुआ वो एक प्री प्लान था? बेटा द लार्जर स्कीम इज प्री प्लान्ड, दैट टाइम टू टाइम धर्म स्थापना हैज टू हैपन। हाउ इट विल हैपन, हु विल disturb dharma, and then what kind of form will be taken, it is planned as things grow, but that larger scheme is there, God is watching and he will make sure that time to time dharma sthapana happens. What we have to do is keep on seeing कि भगवान क्या करते हैं नीचे आके कि धर्म स्थापना हो जाए, उसको हमको फॉलो करना है। Don't wait for God,
do not let adharm happen around you. Right, Akshay? So, sir, did Ram came as an example for humans to live a life? How Yes, to a reference point, a guiding light. Even if everything is planned, we don't know what is planned. So we have to always make the choice and choose the right action. We can't say, तो उन्होंने plan किया था तो हमने कर दिया. We have made the choice, because we don't know what is planned. Choice is always yours. It's a Choice theater. is always ours, because we are unaware of what he has chosen. Sir, you said Om Namah Shivaya. So, sir, in that Om, is it like I read a book, Vedas and Upanishad, there it says that it's Am actually, A-U-M, not Om. Whatever it is, it means your consciousness, your Atma. जैसे यूनिवर्स में कहते हैं कि 98% इज ऑल ब्लैक मैटर एंड देयर अ साउंड व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द साउंड ऑफ ओम, जिसको शिव तत्व बोलते हैं. शिव तत्व जिससे पूरी दुनिया बनी है, जो बाद में जाके 5 एलिमेंट्स में ब्रेक हुआ. तो उस शिव तत्व का आधार जो है वो ओम है. एंड व्हाट इज दैट ओम? दैट इज मी, मेरा कॉन्शियसनेस. चाहे उसका आप ओम बोलो, चाहे अहम बोलो, चाहे आम बोलो, इट इज योर सोल, योर कॉन्शियसनेस व्हिच इज built of 5 elements which find their source in Shiv Tattva, as per Shiv Puran, Mahashiv Puran. You said that Ram Setu bridge was built and there was Ram's name on every stone. So, sir, Ram Setu bridge is now also there. ऐसा कहते हैं कि नासा ने फोटोज भेजी हमको कि ट्रेसेस आर देयर, दे आर वेरी मच देयर, और वी कैन say that comfortably that these are remains of Ram Setu. The images are there on Google and YouTube, beta. Sir, you said that Sita is still waiting for the home to clear. Sir, what is this that Sita went inside the earth? Beta, she went inside and she is in a safe place right now. She's in a very safe place. She is with her mother Earth and she's watching us from there only. And she's waiting for Himshikha, Atul and everybody else to clean our house, clean this mess. By that we mean start respecting women unconditionally, start giving them the respect that they deserve, stop questioning their character without any basis. The day that happens, she will appear magically. The way she disappeared magically, she will reappear magically. So अपने को दिमाग नहीं लगाना है कहाँ गई ढूंढ के लाओ, वो हमसे नहीं होगा. हम अपना घर साफ कर सकते हैं, वो हमको कर रहा है. कैसे आएंगे वो उनको सोचना है, वो उनका काम है. Right, beta? There are so many books, so what should we follow? I just answered, beta. Read everything. सारा ज्ञान लीजिए. उस ज्ञान के बेसिस पे जो आपको सही लग रहा है आप वो कीजिए. उसका जो रिजल्ट होगा उसको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहिए. You've heard of रतन टाटा? You've heard of him? रतन टाटा? Yes, sir. जानते हैं आप उनको? उनका लाइफ का एक फिलॉसफी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि I always have 2 options. Either I spend most of the time deciding whether to do A or to B, A or B, A or B, and then finally acting upon it. I don't think so much. I randomly pick A or B and then spend all my energies and passion in making that choice correct. मैं चूज करने में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, उस चॉइस को करेक्ट बनाने में ज्यादा मेहनत करता हूँ. You know? So इतना भी मत सोचना कि एक्शन का टाइम निकल जाए. जो आपको पता है उसके बेस पे डिसाइड कीजिए. दैट इज योर धर्मा बेटा. नोबडी विल गिव यू अ थंब रूल कि ऐसा ही करना है, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ. ओके सर, जैसे कि हम जानते हैं कि यदि कोई पाप करता है तो उसे उसका फल भी मिलता है जी. तो जैसे वाल्मीकि हुए, उन्होंने कई पाप किए लेकिन बाद में उन्होंने श्री राम की आराधना की, उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला, तो उन्हें उनके पापों का फल क्यों नहीं मिला? बेटा उन्होंने प्रायश्चित किया ना, आपको बताया था ना, कई हजार साल तपस्या करी, उनके ऊपर बॉडी पे एंटहिल बन गया, कोई उनसे खाना नहीं पूछा, पानी पूछा नहीं, आंधी बारिश तूफान सब में बैठे रहे कई साल तक, तो प्रायश्चित हो गया उनका. Different people have different paths of evolution. Some evolve at a very early age and some take ages. So is this also destined? As I said, Parul ma'am, that the bigger scheme is always there, that there is a pool of knowledge, there is a pool of wisdom lying there on this earth only around you, and you will be walking towards that wisdom, but you will always be faced with my leela, my choices. If you take all right choices, you will reach that place quickly. If you take and when I say you, I not only mean you, I mean people around you, because there's a collective karma also, na. So I have not invited Corona, I have not made sure that Corona stays or comes back, but there's a collective karma of this entire universe, collective karma of this entire country, which I am also part of, and I have to bear that. So when I say I, so you might say कि एक छोटे बच्चे ने क्या गलती करी है कि उसको ऐसा किस्मत मिला, उससे तो कुछ कर्म भी नहीं किया. Here comes the concept of collective karma.
और कर्म ऑफ द प्रीवियस बर्थ, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म है. सो डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, योर evolution and your path towards wisdom will be decided. So all we can do is, given the knowledge that we have, at least try to keep on making the right choices, or probably I don't even know what is right or what is wrong. Later on we get to know कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता. तो इतना सोचेंगे तो हम कभी चॉइस ले ही नहीं पाएंगे. जी. प्रीति सचदेवा मैम का कुछ सवाल है. We all know God has made everything, every emotion. So why did he create this emotion in men of suppressing the females? He can change everything, then why does he not alter the male perspective of treating? मैम, प्रीति जी, बड़ा ये ट्रिकी सवाल है और इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है. मैं ये समझ सकता हूँ कि God has created human beings, God has created desires, God has created temptations, God has also given this feeling to man, this misconceived notion that we are more powerful, we can decide your destiny. Or probably God did not want to give that. Men assumed that, and so much so कि हमारे आप स्क्रिप्चर्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, उसमें इतना डेरोगेटरी तरीके से वुमेन को कई बार ट्रीट किया जाता है कि लगता है कि ये क्यों लिखी गई हैं ऐसी बातें. So it is difficult for me to say that God created this thing. Definitely God created Leela, God created certain choices that we could have made, and we probably walked on the wrong path. Because आप देखिए, ये कॉन्शियसनेस भी गॉड ने दी है प्रीति जी आपको कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. जब आपके पास ये कॉन्शियसनेस है तो शायद उस टाइम में भी रही होगी. हमने उस कॉन्शियसनेस को दबाया है, हमने उस कॉन्शियसनेस को मारा है, and we have allowed all those temptations to take the better of us. But the good part is we have this consciousness now, and we are more sajag about it, we are more aware about it. So rather than digging out the past कि हमने क्यों ऐसा होने दिया, let us take a pledge कि आगे से way forward from here now is that we will respect women, we will give them the respect. In fact, we are nobody to give them the respect, they already have it. हम तो खाली उसको respect कर सकते हैं. I can't say that I do women empowerment. Who am I to empower women? They already so empowered. They have given me birth. मैं तो उन पे डिपेंडेंट हूँ इस धरती पे आने के लिए. The only thing is कि जो अपना जो एक फेक इगोइज्म है उसको हमको किल करना होगा. और अब तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी है, अगर ये कर देंगे तो शायद सीता माता सच में आ जाए, शायद हमारे बर्थ में ही आ जाए. तो लेट अस कीप डूइंग दैट. तो इसको प्रीति मैम, आई एम हैप्पी दैट यू हैव दिस कॉन्शियसनेस. प्लीज पास इट ऑन टू अदर्स. एंड पीछे के लोग क्या करेंगे उसको ब्लेम करने की बजाय हम लोग आगे क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं. एकदम सही कहा अतुल जी. एवरी सर्कमस्टांस एक्चुअली इज अ सीड फॉर अ फर्दर एवोल्यूशन. जैसा आपने कहा कि सीता माता फिर एक दिन आ जाएं, तो जब ये एवोल्यूशन होगा ऑफ विमेन गेटिंग दैट स्टेचर बैक, जब वो गार्गी थी और जब वो इतनी सारी ऋषिकाएं थी, तो जब वो वापस आएगा तो ये सब एवोल्यूशन का स्टेज चल रहा है. बिल्कुल मैम, हर घर में सीता हो जाएगी. आप देखिए ना, सीता ऐसे ही आएंगी. जब समाज सीता को अपनाने लायक हो जाएगा, हर घर में सीता होगी. तो हमको उसी दिन का इंतजार करना है. इनफैक्ट इंतजार नहीं करना, उसके लिए काम करना है हमको. इतने जितने यहाँ पे लड़के लोग हैं, बॉयज हैं, इन सब के अंदर तो ये आना ही आना है. व्हाट इज द स्टैचर ऑफ अ वुमन, अ गर्ल, द फीमेल इन आवर लाइफ? शी इज द मदर, शी इज द सिस्टर, शी इज द वाइफ. एंड yeah, to be able to recognize that Jaipuria ke students must be different, and they must be. I told you all the boys the other day कि राम तो बाद में बनोगे, पहले जटायु बनो. वो एक प्रोसेस है, जटायु बनोगे तब जाके राम बनोगे. First learn to be somebody who can sacrifice his own self to save the modesty of a woman. And आप लोग centers बनेंगे. All of you men will be centers around which there will be a collectivity because of the light that is going to emit from you. That collectivity will change. That is what you all are going to turn into. That's our dream, our collective dream. बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. एंड एक ये है कि हाँ, नारी में शक्ति है, शिव की शक्ति पार्वती है, हर गॉड के साथ गॉडेस एसोसिएटेड है, और दूसरी तरफ एक डार्क साइड भी है. सो चिल्ड्रन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम उसमें से क्या लें, हम क्या लें. हमको ये रूप समझना है ना कि नारी में शक्ति है, and we have to understand that, we have to accept that, and we have to be with it, and we have to ensure that that happens in the present world. Because अभी अतुल जी ने आप लोगों से कहा कि किताबें पढ़ो और अपना पर्सपेक्टिव ढूंढो इसमें. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. That is the aim of the spiritual retreat, और इसको छोड़ना नहीं है. This is very very essential. So बहुत ही beautiful. It was a very beautiful journey. We have no words to express, and probably we'll have to take the help of silence to be able to convey
what we really want to say.